بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جو آج ہم نے سٹوری شروع کرنی ہے اس کا نام ہے مہرو بائے رخسانہ نگار عدنان۔ آج میری شادی کی پہلی رات ہے، بلکہ شادی کے بعد سسرال میں پہلی رات ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے میری نند، ساس اور میرے شوہر کی کزن مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہیں۔ نٹ کھٹ سی شریر لڑکیاں باتوں باتوں میں ایسے ذو معنی جملے کہہ رہی تھیں کہ میری جھکی گردن شرم سے اور بھی جھکی جا رہی تھی۔ ارے ہٹو لڑکیوں، کیوں میری بہو کو ہلکان کیے دے رہی ہو؟ چلو اب بھاگو ادھر سے، اسے ذرا آرام سے بیٹھنے دو۔ میری ساس نے انہیں پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ آرام؟ اور آج کی رات یہ کریں گی؟ ہا ہا ہا، کیوں آپی؟ نیلے سوٹ میں ملبوس شوق چہرے والی لڑکی بلند آواز میں بولی تھی اور پھر خود ہی خوب ہنسی تھی۔ سب نے اس کی ہنسی کا ساتھ دیا تھا۔ اچھا فہمی، تم صرف باتیں نہ مٹھارو، یہ سارا کا میک اپ تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو ذرا ٹھیک کر دو، میرا تو ارسلان تنگ کر رہا ہے، نیند کی کمی اور بے آرامی کی وجہ سے بہت چڑچڑا ہو رہا ہے، میں اسے سلانے جا رہی ہوں۔ میری نند نے جاتے جاتے ان شریر لڑکیوں کو ہدایت کی۔ ارے آپی، آپ فکر ہی نہ کریں، جا کر اپنے چیاؤں پیاؤں کو سنبھالیں۔ بھابھی جان کا میک اپ تو ہم ایسے سیٹ کریں گے کہ عفان بھائی آتے ہی اپ سیٹ ہو جائیں گے، دوسری شوخی سے بولی۔ میک اپ تو ٹھیک ہے بلکہ زبردست ہے، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ فہمی میرے اوپر جھکی، دوپٹہ ذرا سا کھسکا کر میرے چہرے کا جائزہ لیا۔ کیا وجہ؟ دوسری مزہ لے کر پوچھنے لگی۔ بھابھی جان رخصتی کے وقت ذرا بھی نہیں روئیں، بھائی جان سے ملنے کی خوشی جو اس قدر زیادہ تھی، پھر اتنے زبردست پارلر سے تیار ہوئیں، میک اپ بگڑنے کا اندیشہ؟ انہوں نے شرم و حیا کو دونوں باتوں پر قربان کر دیا۔ کیوں بھابھی جان؟ وہ شوخی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ غصہ، کچھ شرم آئی، میں نے سر جھکا لیا۔ چلو ہٹو، تنگ نہیں کرو، بیچاری شام سے بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہے، انہیں ذرا ایزی ہو لینے دو۔ آؤ ہم عفان بھائی کو گھیرتے ہیں، نیگ لیے بغیر اس کمرے تک نہیں آنے دینا انہیں۔ یہ کہتے ہوئے شیطان لڑکیوں کا ٹولہ کمرے سے نکل گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا، سر اونچا کر کے کمرے میں موجود آکسیجن جی بھر کے اپنے اندر کھینچی اور نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ تو اچھا ہے، خوبصورت اور کشادہ بھی۔ میرے جہازی سائز بیڈ کے علاوہ کمرے میں اور بھی کافی سامان تھا، پھر بھی کمرہ کشادگی کا تاثر پیش کر رہا تھا۔ میرے جہیز کا سامان 2 دن پہلے ہی ادھر آ گیا تھا۔ کمرے میں فرنیچر کے ساتھ میچنگ قالین اور پردے اچھے لگ رہے تھے۔ خوبصورت سی گولڈن اوول شیپ کی ڈریسنگ ٹیبل عین میرے سامنے تھی۔ میں نے اپنا سجا سجایا روپ اس میں دیکھا تو بے اختیار شرم آنے لگی۔ سب ہی نے میرے دلہناپے کے روپ کی تعریف کی تھی۔ ٹھیک ہے، میری شادی کا جوڑا بہت قیمتی تھا، زیور بھی مجھے دونوں طرف سے خوب ملا تھا، میک اپ بھی میں نے شہر کے مہنگے ترین پارلر سے کروایا تھا۔ میرے خوبصورت لگنے میں ان چیزوں کا بھی ہاتھ تھا، لیکن کچھ تو میرے چہرے مہرے میں بھی ایسا تھا جس نے ان چیزوں کو اور قیمتی بنا دیا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں پڑی سونے کی چوڑیوں کو ہولے سے چھیڑا، مہندی کا رنگ بھی خوب چڑھا تھا، لال سرخ۔ سب نے دیکھ کر کہا تھا، ارے تمہاری ساس تو تم پر جان چھڑکے گی، ایسا اچھا رنگ آیا ہے مہندی کا۔ میرے لب ہولے سے مسکائے۔ ایک دم سے مجھے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا، ہلکی سی آہٹ تھی، جوتوں کی آواز تو نہیں آئی تھی، شاید قالین کی وجہ سے بس ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی تھی، اور کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے میں دل کی جگہ کسی لوہار کا ہتھوڑا ہو، ہاتھ یکدم ہی برف ہونے لگے۔ میں نے گردن اور بھی جھکا لی۔ ہی، یہ میری بھابھی ہے، پاڑدار آواز تھی، کوئی زور سے ہنسا تھا، ساتھ کسی نے خوب نیچے ہو کر میرے چہرے کو دیکھا۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں، وہ 16-17 سال کی یا شاید اس سے بھی زیادہ عمر کی کوئی لڑکی تھی، بڑی بڑی سبز کنچوں جیسی آنکھیں جیسے بلیوں کی ہوتی ہیں، ان میں چمک اتنی زیادہ تھی کہ زیادہ دیر تک انہیں دیکھ نہ سکی۔ اس کے بوائے کٹ بال سرخ اور سنہری تھے، رنگ خوب سفید اور سرخ تھا، ناک چھوٹی سی، دہانہ نسبتاً بڑا تھا، اور بھرے بھرے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے ڈر سا لگا، یہ میری ہیں؟ اس نے ایک دم سے میری دونوں کلائیوں کو اپنے کھردرے اور گرم ہاتھوں میں جکڑ لیا اور زور لگا کر میری چوڑیاں اتارنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھ کھینچنے چاہے مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یہ اچھی ہیں، نہیں ہیں، ہی میری ہیں، مجھے دے دو، کوئی بات نہیں۔ اس نے چوڑیاں اتارنے کے لیے خوب زور لگایا، میری ایک کلائی کا گجرا ٹوٹ کر گر گیا۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے دبی آواز میں غصہ کیا۔ تم ووٹی ہو، دلہن ہو، میری بھابھی، ہاں یہ مجھے دو۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر میرا چہرہ زور سے اونچا کیا۔ سرخی لگائی ہے، بڑی اچھی ہے، ہاں مجھے بھی لگاؤ ادھر۔
اس نے زور سے اپنا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میری خوبصورتی سے سجی میرون کلر کی لپسٹک پر پھیر دیا۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں نا پیاری؟ سرخی لگ رہی ہے نا؟ سرخی لگ گئی ہے نا؟ دیکھو ادھر دیکھو دیکھو، اس نے مڑ کر کہا، حالانکہ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے ایک زخمی نظر شیشے پر ڈالی۔ میری لپسٹک ہونٹوں کی آؤٹ لائن سے نکل کر بائیں طرف گال اور تھوڑی تک آ گئی تھی۔ سارا میک اپ، سارا چہرہ ہی جیسے بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اور دو نا، اس نے تیزی سے دوسری انگلی اوپر ہونٹ پر ماری۔ میں فوراً بدک کر پیچھے ہٹی، مگر وہ اپنا کام کر چکی تھی اور اب مزے سے اپنی انگلی ہونٹوں پر پھیر رہی تھی۔ میرا دل چاہا بس چیخیں مار مار کے روؤں۔ پورے 10,000 کا میک اپ کروایا تھا میں نے، امی کی چیخو پکار، غصے اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر، اور اب میں اچھی خاصی کارٹون لگ رہی تھی۔ یہ اچھا ہے، مجھے دو۔ اس نے ایک دم بیٹھ کر پہلے میرے ٹیکے اور جھومر کو کھینچا اور پنوں سے جکڑے میرے دوپٹے کو زور سے اپنی طرف کھینچا۔ نازک سا بھاری کام والا دوپٹہ زور سے چرکا اور سر کے عین بیچ میں لگی پن کے نیچے سے شاید پھٹ گیا۔ میرا 30,000 کا قیمتی سوٹ، میرا دل پھٹنے کو تھا۔ غصے اور اپنی بے تحاشا بے بسی کا احساس، ایک انجان جگہ پر اس طرح کا استقبال، اور بے بس کہ میں کسی کو آواز دے کر بلا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں بس پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو تھی۔ یہ بھی سرخی ہے، یہ بھی دو۔ اس نے میری آنکھ کے پپوٹے پر لگے آئی شیڈ کو انگلی سے چھیڑا۔ نکلی پلکیں پہلے ہی بائیں آنکھ کی آئی لیش تنگ کر رہی تھی۔ اس منحوس لڑکی کی انگلی کا زور نہ سہار سکی اور جھٹ سے میری گود میں آ گری۔ ہی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس نے پلک اتر جانے پر خوب تالیاں پیٹی اور اٹھ کر ہنسنے لگی۔ میں لے لوں، یہ میری ہے۔ اس نے پلک کو اٹھا کر الٹا سیدھا گھما کر دیکھا۔ میرے آنسو آنکھوں کی حدود سے نکل ہی پڑے۔ ارے مہرو کی بچی، تم ادھر ہو شیطان، تمہیں امی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اسی وقت مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے سر جھکانے سے پہلے دیکھ لیا، وہ عفان ہی تھے۔ میں نے ان کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ ہماری شادی خالصتاً ارینج تھی۔ بھائی یہ میری ہے، یہ میری ہے، میری بھابھی، میری سرخی، اور یہ بھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پلک کو خوب نچا نچا کر کہا۔ اوہ سوری بھائی سارا، اس نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا ہے؟ وہ کان کے پاس آ کر بولے تو میرے آنسو اور ابلنے لگے۔ ارے مہرو کی بچی، تو ادھر چھپی بیٹھی ہے، میں سارے گھر میں ڈھونڈ چکی ہوں تجھے، چل ادھر سے۔ میری ساس اندر آ کر اس آفت کی پرکالہ سے بولی اور اس کا بازو کھینچنے لگی۔ میں نے نہیں جانا، ادھر ہی بھابھی کے پاس ہی۔ کوئی بات نہیں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہرو بری بات، بھابھی تھکی ہوئی ہیں، تنگ نہیں کرتے، چلو میرے بچے، تم نے اپنے نئے کپڑے نہیں دیکھنے جو صبح پہننے ہیں؟ نئے بالکل، میں دکھاؤں؟ میری ساس نے اسے پچکارا۔ میرے نئے کپڑے؟ ہاں ہاں، سرخی بھی، ہار بھی، اور کیا؟ وہ ایک قدم بڑھا کر پھر اڑ گئی۔ اور نئے جوتے بھی، بندے بھی، آؤ میں دکھاؤں؟ میری ساس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ عفان بیٹا، فروٹ، دودھ اور کھانے کی دوسری چیزیں میں نے فریج میں رکھوا دی ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، وہ جاتے جاتے بولی۔ ان کے جاتے ہی عفان نے اٹھ کر دروازہ لاک کیا۔ توبہ، یہ لڑکیاں ہیں یا آفتیں، میری جیب خالی کروا دی انہوں نے۔ بھائی شادی کرنا تو ہمارے ملک میں سب سے مہنگا کام ہے، خود سے کہتے ہوئے انہوں نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ تم ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے میری جھکی گردن سے گمان کیا کہ شاید میں بہت شرم محسوس کر رہی ہوں، حالانکہ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ بہت تعریفیں کر رہے ہیں ہماری دلہن کی، بہت خوبصورت ہے، بہت لکی ہو عفان میاں جو ایسی حسین دلہن ملی ہے، پر ہم تو کہیں لکی تو ہماری دلہن ہے جسے ہم جیسا دلہا ملا ہے، کیوں سارا؟ انہوں نے کہتے ہوئے جھک کر میرا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ میں نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ ایک دو لمحے بعد ہی میں نے محسوس کیا وہ بالکل چپ ہیں مگر ہل رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ ہنس رہے تھے، بے آواز ہنسی، ان کے وجود کو تو ہلا رہی تھی، مگر مجھے اور غصہ آ گیا۔ یار یہ مہرو تو بالکل ہی تمہیں کارٹون بنا گئی ہے، انہوں نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے کہا۔ دیکھو ذرا آئینے میں۔ انہوں نے ذرا پیچھے کھسک کر آئینہ دکھایا۔ میرا ٹیکا الٹ کر سر پر پڑا تھا، جھومر کان کے پاس الٹا ہوا تھا، ماتھے سے بیک کومنگ الجھ کر عجیب سا سٹائل بن گیا تھا، دوپٹہ سارا ایک طرف ڈھلکا ہوا اور چہرہ لپسٹک سارے منہ پر پھیلی ہوئی، ایک پلک اتری ہوئی، دوسری ذرا سی ہٹ گئی ہوئی، اور آنسوؤں کی لکیروں کے نیچے فاؤنڈیشن سے دھلی ہوئی جلد، کاجل کے دھبے۔ واقعی میں تو اچھی خاصی کارٹون لگ رہی تھی۔ مجھے اور رونا آ گیا، میری ساری محنت اور پیسہ برباد ہو گیا۔
सॉरी यार, मेहरू की तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, मगर सच कहूँ तुम इस रूप में भी बहुत बहुत अच्छी लग रही हो। रियली, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने उंगली की पूरों से मेरे आंसू साफ किए। इस आईने को छोड़ो, मेरी आंखों के आईने में देखो ना। आज की रात रोए जमीन पर तुमसे बढ़कर कोई हसीन नहीं जो इन आईनों में जच सके। देखो ना। उनका रोमांटिक लहजा, मोहब्बत भरा एहसास और गरम गरम हाथों का लम्स, मेरे आंसू, मलाल, दुख सब उड़न छू हो गए। ऐसे हसीन रूप के लिए ये रोनुमाई तो बहुत हकीर है। उन्होंने आहिस्ता से ब्रेसलेट मेरी कलाई में पहना दिया जहां से गजरा टूटा था। वाकई लोग सच कहते थे, अफान मियाँ लकी है जो ऐसी हसीन दुल्हन मिली है। और अफान के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। वो बिल्कुल मेरे करीब आ गए थे। मेरा दिल उल्टा सीधा धड़कने लगा और चंद लम्हों बाद मैं भूल ही गई थी कि थोड़ी देर पहले मैं किस कोफ्त के आलम में रो रही थी और एक पागल ने किस तरह बुरी तरह से मुझे मुझे जिच किया था। मेरे अरमानों भरे दिल का उसने क्या हाल किया था। मैंने यही सोचा वो कोई मेहमान होगी और अफान की मोहब्बत के समंदर में डूबती चली गई। अगली अगली सुबह बहुत हंगामा खेज थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। जैनब आपी ने मुझे ऑरेंज कलर का खूब भारी कामदानी सूट निकाल कर दिया। सारा, जल्दी से नहा धोकर आ जाओ ड्राइंग रूम में, तुम्हारे घर से भी नाश्ता आने वाला है। अभी फोन आया था। फिर कुछ अम्मी के खास मेहमान भी बैठे हैं जिन्होंने नाश्ता तुम्हारे साथ ही करना है। कल तो अम्मी ने किसी को भी तुमसे मुतारिफ नहीं करवाया था। आज सब मिलने को बेचैन हैं। मेरे कपड़े निकालते हुए वो जल्दी जल्दी कह रही थी। मैं तैयार होकर बैठ गई। अफान की कज़न फराह ने मेरा मेकअप कर दिया था। हालांकि मैंने खुद भी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और अच्छा मेकअप कर सकती थी, मगर पहले ही दिन मैं यूं बढ़ चढ़कर अपना हर काम खुद नहीं कर सकती थी। वो मुझे तैयार करके ड्राइंग रूम में ले आई। ढेर सारे मेहमान बैठे थे। मैंने नीची आवाज में सबको सलाम किया। मेरी सास ने उठकर मेरा इस्तकबाल करते हुए मुझे गले से लगाकर खूब प्यार किया, दुआएं दी और साथ ही सबका तारुफ मुझसे कराने लगी। सबकी सराहती हुई नजरें बता रही थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ। इस वक्त मेरे भाई और भाभी नाश्ता लेकर आए। अजनबी से माहौल में अपने घर वालों को देखकर मेरे दिल को अजीब सी खुशी हुई। फिर नाश्ता अफान ने हमारे साथ ही किया। शाम को वलीमे की तकरीब थी। मुझे दोपहर में ही जैनब आपी पार्लर ले आई। तुम आज कल से ज्यादा अच्छी लग रही हो, जैब आपी ने मुझे पार्लर के गेट से गाड़ी में बिठाते हुए कहा। वैसे ये नेचुरल सी बात है। दुल्हन पहले दिन की निस्बत दूसरे दिन ज्यादा अच्छी लगती है। मोहब्बत जो नया रूप देती है वो सबको ही नजर आता है। एक रात का जादू, वो सरगोशी के अंदाज में मेरे कान में कह रही थी। अफान ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। मुझे खूब ही शर्म आई। वलीमे की तकरीब इस वक्त और भी हसीन हो गई जब अम्मी, भाई, भाभी और मेरी बहन भी आ गई और मेरी 3 करीबी सहेलियां भी। कैमरे और वीडियो लाइट्स में मेरा रूप और भी दमक रहा था। अफान आते जाते चोरी चोरी मुझे देख रहे थे। मेरी 2-4 बार उनसे नजरें मिली तो उन्होंने मुझे आंख मार दी। उफ तौबा, मैं शर्म से जैसे दोहरी हो गई। क्या मंत्र फूंक दिया है अफान भाई ने, एक रात में ही इतनी हसीन हो गई हो। मैं तो नजर भर के देख नहीं रही। मेरी दोस्त फरजाना मेरे कान के पास आकर बोली, अगले माह तुम्हें भी पता चल जाएगा कौन सा मंत्र होता है जो एक ही रात में असर कर जाता है। रक्षंदा ने फरजाना को छेड़ा जिसकी अगले माह शादी थी। हाँ, तुम्हें तो जैसे बहुत तजर्बा है ना। तजर्बा है तो कह रही हूँ ना, आखिर सारा से 6 माह सीनियर हूँ। क्यों सारा? रक्षंदा ने झुककर मुझसे पूछा। अरे यार, गर्दन तो ऊंची कर लो। तुम तो पहले दिन की तरह दुल्हन की तरह शर्मा रही हो। वलीमे की दुल्हन तो पटर पटर दीदे घुमाकर सबको देखती है, तुम्हारी अभी तक शर्म ही तमाम नहीं हो पा रही। दफा बदतमीज, मैंने उसे जोर की चुटकी काटी। हाय अल्लाह, देखा हाल, अब सरताज की शान में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं होता मोहतरमा को। वो मायनी खेज अंदाज में बोली, घर जाकर तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद करोगी। मैंने दांत पीसे तो वो हंस दी। इसीलिए बाबा, मैं तो होटल से ही तुम्हें बाय कह दूंगी, तुम जाकर दिखाना। मैंने उसे आंखें दिखाई और रात की कहानी, अफान की मोहब्बतों, वादों और अहदों पर माँ की कहानी काट छाट कर मुझे उन तीनों को सुनानी तो पड़ी कि दिल खुद बहुत लपक लपक कर अपनी पजीराई की दास्तान सुनाने को मचला जा रहा था। और दास्तान का अव्वल हिस्सा यानी नामा मैंने खुद नहीं सुनाया। वैसे भी मेरा जहन इसको भूल चुका था। वो दोबारा मुझे नजर भी तो नहीं आई थी। वलीमे की तकरीब के बाद मैं और आफान अम्मी के साथ ही घर आए थे। अगले रोज मुकलावे की रस्म थी। एक ही रात में मुझे अपना घर पराया पराया सा लगने लगा था और वो बेडरूम जहां महज एक रात गुजारी थी, अपने ही कमरे में लेटे हुए कई बार याद आया। शादी के चौथे दिन हम दोनों हनीमून के लिए निकल गए। अरे बच्चे, जो तुम्हारे मामू, चचा, फूफी दावतों की लिस्ट बनाए बैठे हैं, इनको क्या जवाब दूं? पहले दावतें तो भुगता जाओ, फिर चले जाना घूमने फिरने, अम्मी ने हमारे जाने से एक रात पहले आकर कहा।
امی دعوتیں سب آ کر، سارا کے چچا اور خالہ وغیرہ نے بھی انوائٹ کر رکھا ہے، مگر میری چھٹیاں کم ہیں۔ ہم گھوم پھر آئیں، پھر دعوتیں وغیرہ تو آفس کے دوران شام کو بھی اٹینڈ کی جا سکتی ہیں۔ عفان نے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھتے ہوئے کہا۔ چھٹیاں کتنی رہ گئی ہیں تمہاری؟ امی نے پوچھا۔ صرف ایک ہفتے کی۔ ایک ہفتہ پہلے جو گھر میں بٹھا لیا تھا آپ نے، تیاری بھی تو بچے تم نے ہی کرنی تھی، تمہارے دونوں بھائی تو بس مہمانوں کی طرح شریک ہوئے۔ چلو بڑا اچھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، تم لوگوں کا جانے کا پروگرام پکا ہے تو ہو آؤ پھر خیر خیریت سے، واپس آؤ تو دعوتیں ہو جائیں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور سارا بیٹا، زیور زیادہ نہ رکھنا، دور دراز کے سفر میں کہیں ویرانی کہیں آبادی میں ہلکے سے کانوں میں بندے لاکٹ اور ایک دو انگوٹھیاں پہن لینا۔ وہ مجھے تاکید کرتے ہوئے بولی تو میں نے سر ہلا دیا۔ میرا خود زیادہ زیور لے جانے کا پروگرام نہیں تھا، اور وہ 5 دن جیسے 5 پلوں میں گزر گئے۔ مری، بھوربن، نتھیا گلی، ایبٹ آباد۔ میرا تو دل بہت تھا کاغان سوات والی سائڈ پر جانے کو، مگر عفان کی مجبوری تھی، ان کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی۔ آپ زیادہ چھٹیاں نہیں لے سکتے تھے؟ کشمیر پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے کچھ ناراضگی سے کہا۔ یار زیادہ لی تو تھیں، کچھ تیاری میں گزر گئیں اور کچھ شادی میں، اب 3 ہفتے کیا کم ہوتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ ان دنوں کا پتہ بھی نہیں چلا۔ چلو پھر آئیں گے اگلی چھٹیوں میں، پرومس، انہوں نے اپنے مضبوط ہاتھ میں میرا ہاتھ لے کر کہا۔ یہ ان دنوں میں کیے گئے وعدے بھی بس ان دنوں جیسے ہوتے ہیں، لگتا ہی نہیں کبھی کیے گئے تھے، حسین یادوں کا حصہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ میں نے منہ بنا کر کہا تو وہ ہنس پڑے۔ تمہیں بہت تجربہ ہے، چلو کوشش کریں گے وعدہ نہ صحیح پھر آنے کا۔ میں نے جھلا کر سر ہلا دیا۔ مجھے پتا تھا اس کے بعد شاید ہی زندگی موقع دے۔ رات کو 12:30 بجے ہم گھر پہنچے تھے۔ امی ہمارے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ تم نے اچھا کیا روانہ ہونے سے پہلے مجھے فون کر دیا، میں نے کھانا تو تیار کروا لیا، ورنہ تم لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا، کیونکہ آج تو تمہارے بڑے بھائی کی طرف سب کی دعوت تھی۔ زیب کل چلی جائے گی، اسی لیے انہوں نے رات کھانے پر بلا لیا تھا۔ امی نے ہمارے لیے کھانا لگاتے ہوئے کہا۔ سارا تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں اتنی محبت کرنے والی ساس ملی ہے۔ امی نے میری ساس کا مجھ سے برتاؤ دیکھ کر کہا۔ واقعی وہ بہت اچھی تھی، کم از کم ابھی تک تو اچھی ہی تھی۔ مجھے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ گرم گرم چکن کڑاہی، مٹن پلاؤ، رائتا اور امی کے ہاتھ کے گرما گرم پھلکے بھوک کو اور بڑھا رہے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہی ایسے نیند آ گئی کہ دن چڑھے بھی ہم دونوں کی آنکھ نہ کھل سکی۔ ایک تو سفر کی تکان، دوسرے اپنے گھر کا آرام۔ 9:30 بجے کسی نے زور سے دروازہ دھڑدھڑایا۔ اف، 9:30 بج گئے، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سو جاؤ یار، آج آخری چھٹی ہے، کل سے پھر وہی روٹین ورک شروع، صبح سے شام تک مصروفیت۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر عفان نے کسل مندی سے کہا اور کروٹ لے لی۔ عفان بیٹا اٹھ جاؤ، زیب کو جانا ہے، 1 بجے کی ٹکٹیں ہیں اس کی، 10 تو بجنے کو ہیں۔ امی کی آواز باہر سے آئی تو عفان چھلانگ لگا کر اٹھے تھے۔ اوہ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ آج آپ ہی کو جانا ہے، بہت بری بات، ہم رات سے آئے ہیں اور ان سے ملے بھی نہیں اور اب تک سو بھی رہے ہیں۔ ان کی ساری سستی رفع ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، سو جائیں، آج آخری چھٹی ہے، کل سے پھر وہی روٹین ورک شروع۔ میں نے فوراً ان کی نقل اتاری تو وہ ہنستے ہوئے باتھ روم میں گھس گئے۔ امی ناشتہ تیار کر چکی تھی، بلکہ میرے دوسرے نمبر کی جیٹھانی بھی ان کے ساتھ ہی کچن میں مصروف تھی۔ ان لوگوں کا گھر بن چکا تھا، بس 1 آدھ ہفتے میں ہی انہوں نے اس میں شفٹ ہو جانا تھا۔ میری جیٹھانی نے ہی مجھے خود ہی بتایا تھا۔ زیب آپی اپنی پیکنگ میں الجھی ہوئی تھی۔ زیب بیٹا آ بھی جاؤ، پہلے ناشتہ کر لو، پھر بچا کچا سمیٹ لینا، رات سے تمہاری پیکنگ ہی مکمل نہیں ہو پا رہی۔ امی نے آواز لگائی۔ امی، بچوں کے کپڑوں نے پاگل کیا ہوا ہے، کسی کی نیکر ہے تو شرٹ نہیں، پینٹ ہے تو جوتا نہیں، حالانکہ سارے فنکشن کے دوران سب کچھ سمیٹ سمیٹ کر رکھتی رہی ہوں، پھر بھی۔ وہ باہر آتے ہوئے بولی۔ بچوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے، تم پہلے ناشتہ کر لو۔ یہ مہرو کہاں ہے؟ اسے بھی آواز دو، آ کر کچھ کھا لے۔ امی کے جملے نے سلائس اٹھاتا میرا ہاتھ وہیں روک دیا۔ مہرو؟ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، یہ ابھی تک یہی ہے؟ امی، اس نے کھانا کھا لیا ہے، رات کا پلاؤ گرم کر دیا تھا میں نے، زیب آپی نے جواب دیا۔ پھر 12 بجنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ آپی جلدی کریں، میں نے سارا سامان ڈگی میں رکھ دیا ہے، آپ بس اب بیٹھنے کی کریں، دیر ہو رہی ہے، عفان نے آ کر کہا۔ ہاں چلو، میں بھی تیار ہوں۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا۔ تینوں بچے پہلے ہی بھاگ گئے تھے ماموں کے پیچھے۔ زیب آپی امی سے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری بچی، روتے ہوئے نہیں جاتے، خیر سے سفر کٹے تمہارا، جاتے ہی فون کرنا، بس اب عفان کی شادی کر دی ہے، میں فارغ ہوں، لگاؤں گی جلد ہی تمہاری طرف چکر۔ امی نے انہیں دلاسا دیا۔ بس کہتی ہیں، آتی کب ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔
आप ही चले ना, टाइम देखें आप, अफान ने फिर आकर कहा। सारा तुम भी जाओ हमें सी ऑफ करने, जेब आपी ने जाते जाते मुझसे कहा तो मैं हिचकिचा कर पहले अफान को और फिर अम्मी को देखने लगी। अफान ने भी मुझे साथ आने का इशारा किया। हाँ हाँ चली जाओ सारा, कोई हर्ज नहीं, अम्मी ने फराक दिली से कहा तो मैं उठ खड़ी हुई। जेब आपी आगे बैठ गई थी, मैं उनके बच्चों के साथ पीछे बैठ गई थी। दूसरी खिड़की की तरफ मेहरू बैठी थी, सबसे लाताल्लुक, अपने आप में मगन, अपने हाथों से खेलते हुए। अच्छा तो ये जेब आपी के साथ थी, मैंने कुन अखियों से उसे देखते हुए सोचा। गाड़ी चल पड़ी, रास्ते में हल्की फुल्की बातें होती रहीं। स्टेशन आ गया। आप ही जाते ही फोन कर दीजिएगा, वैसे मैंने मुजम्मिल भाई को फोन कर दिया था, अब जाकर फिर कर दूंगा, वो स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। अफान ने आपी को और बच्चों को गाड़ी में बिठाते हुए ताकीद की। अच्छा भाई सारा, खुश रहो, सबका ख्याल रखना, और तुम दोनों ने कराची जरूर आना है। अफान ने मुझसे अगले माह का आने का वादा किया है, तुम भी इसे याद दिलाना। मैं कराची जाकर फोन करूंगी, ना आए तो नाराज हो जाऊंगी, उन्होंने प्यार से मुझे गले लगाते हुए कहा। उसी वक्त गाड़ी ने विसल दी तो हम दोनों अलविदाई कलमात कहते हुए गाड़ी से नीचे उतर आए। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ने लगी। उफ तौबा, किस कदर रश था, गर्मी भी रश की वजह से बढ़ जाती है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अफान ने मेरे लिए दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। मैं बैठते बैठते धक से रह गई। मेहरू मजे से पिछली सीट पर बैठी चिप्स खा रही थी, उसकी कंचों जैसी आंखें धूप में और भी चमक रही थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट फूट सा गया। आपी चली गई, हाँ आपी चली गई भाई, आपी चली गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो कहकर मजे से फिर चिप्स खाने लगी। अफान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेहरू 1 साल की थी जब उसे टाइफाइड हुआ। इन दिनों अम्मी के यहाँ चौथा बेटा हुआ। डिलीवरी के दौरान ऐसी पेचीदगियां हो गईं कि ऑपरेशन करना पड़ा। फिर बच्चा बेहद कमजोर था, हमारा सारा घर ही उलट पुलट हो गया। भाई दोनों बड़े थे, इन्हें गर्दारी से क्या मतलब। जेब आपी बड़ी तो थी, मगर इतनी भी नहीं कि अम्मी की जगह घर संभाल सकती। खुद उनके एग्जाम्स हो रहे थे। अब्बू ने एक कुल वक्ती मुलाजमा भी रख दी, छोटे बच्चे और मेहरू की देखभाल के लिए। घर के कामों के लिए मासी अलहदा से आती थी। मेहरू का बुखार कम ही नहीं हो रहा था, वो शायद अम्मी को मिस करती थी। फिर अम्मी की हालत अच्छी खासी खस्ता थी, उठने बैठने से वो आजिज थी। फिर छोटे बच्चे को संभालना जो कि बेहद कमजोर था, यही कमजोरी उसकी मौत का सबब बन गई। वो तो 3 महीने में चटपट हो गया। अच्छा इलाज और तवज्जो के बावजूद भी अपनी जिंदगी इतनी ही लिखवा कर आया था। हम सबको बेहद सदमा था। अम्मी का गम सबसे सिवा, एक तो इतनी तकलीफ उठाई, फिर भी वो बच ना सका। अभी मुन्ने के सदमे से हम संभले भी ना थे कि डॉक्टर ने मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद बताया कि मेहरू का टाइफाइड बुखार उसके दिमाग पर असर कर गया है। दवा बाकायदगी से ना इस्तेमाल करने की वजह से बुखार के जरसूमों ने उसके दिमाग के खुलियों पर हमला कर दिया है। इसके दिमाग के दो खाने मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जिसका नतीजा जहनी मफलूजी की सूरत में निकल सकता है। हमारे तो हाथ पांव फूल गए। अब्बू ने फिर शहर का कोई कंसल्टेंट ना छोड़ा जिससे मेहरू का इलाज ना करवाया हो, मगर सब बेसूद। वो जूं जूं बड़ी होती गई, उसकी दिमागी कमजोरी वाज़ेह होती गई। आज 18 साल की उम्र में भी इसका दिमाग 5-6 साल के बच्चे की तरह काम करता है। आज तक हमने इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, तावीज़ गंडे, हिकमत, कुछ भी तो अम्मी ने नहीं छोड़ा कि किसी तरह उसकी दिमागी हालत कुछ ही बेहतर हो जाए, मगर कुछ भी अफाका नहीं हो सका। फिर इसे जहनी तौर पर माजूर बच्चों के स्कूल में भी डाला गया। वहाँ ये 6 साल तक जाती रही, मगर खास तब्दीली नहीं आई। उल्टा हर दूसरे तीसरे हफ्ते ये जख्मी होकर आ जाती या किसी बच्चे को जख्मी कराती। स्कूल वालों की मुसलसल शिकायतों पर बिल आखिर अब्बू ने इसे स्कूल से उठा लिया। अब ये घर पर ही रहती है। वैसे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं करती, ना किसी को मारती पीटती है, मगर कभी कभार जब इसे दौरा पड़ता है तब कुछ बेकाबू हो जाती है। मगर अब ये कैफियत भी खासी कम हो गई है। असल मसला तब हुआ जब बड़े भैया को अपने किसी दोस्त की बहन पसंद आ गई। उन्होंने अम्मी अब्बू को बसदे शौक उनके घर रिश्ता लेने के लिए भेजा तो उन लोगों ने कोरा जवाब दे दिया, हमारी बेटी क्या फालतू है कि हम उसे पागल खाने में भेज दें। आप शरीफ लोग हैं, बेटा भी हमें आपका पसंद है, मगर उसकी एक ही शर्त है कि या तो मेहरू को मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दें या हमारी बेटी को अलहदा घर ले दें। जाहिर है उनकी दोनों शर्तें ही इस कदर नामाकूल थी, अब्बू ने कहाँ मानना था। बड़े भैया ने कुछ दिन हंगामा किया, फिर खुद ही चुप हो गए। अगर वो अलहदा घर लेने की पोजीशन में होते तो शायद ले भी लेते, मगर अभी तो उनकी जॉब को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसीलिए चुप करके बैठ गए। उसके बाद अम्मी ने 3-4 जगह उनकी बात चलाई, खानदान के अंदर भी और बाहर भी। किसी ने साफ और किसी ने ढके छुपे अल्फाज में यही उज़र पेश किया।
अब बड़े भैया जैसे अपनी शादी से मायूस हो चले थे, हर वक्त गुस्से की हालत में रहते। चिड़चिड़ापन उन पर तारी रहने लगा। बहरहाल अम्मी अबू ने दिन रात कोशिश करके ताहिर भाभी के घर वालों को राजी कर लिया और भैया की शादी कर दी। शादी हो गई, सब मामलात खुशसलूबी से अंजाम पा गए। शादी के बाद कुछ दिन तक अमन रहा, मगर फिर भाभी की चीखों पुकार शुरू हो गई। मेहरू मौका पाकर उनके कमरे में तो घुस जाती, उनके मेकअप का सामान तबाह कर देती, उनके फर्नीचर को छुरी या किसी नोकीली चीज से खुरा जाती। फिर भाभी ने कमरे को लॉक करना शुरू कर दिया। उसका भी खास फायदा नहीं हुआ। अब हर वक्त उनकी चाबी गुम रहती, जो अक्सर मेहरू छुपा देती। 2 दफा कमरे का लॉक तोड़ना पड़ा और आखिरी सितम। अफान ने गहरा सांस लिया। भाभी प्रेग्नेंट थी। शायद दूसरा तीसरा माह था कि मेहरू को दौरा पड़ गया। उसने भाभी को जोरदार धक्का दिया। भाभी की चीखों पर सारा घर इकट्ठा हो गया। उनका हमल जाया हो गया और वो अपने वालदैन के घर चली गईं। वो वापस आने से साफ इनकार कर रही थीं कि जब तक बड़े भैया उनके लिए अलहदा घर का इंतजाम नहीं कर देते, तब तक वो वापस नहीं आएंगी। फिर अब्बू ने खामोशी से भैया को एक छोटा सा घर ले दिया और इस घर में उनका हिस्सा खत्म कर दिया। भैया ने खुशी खुशी अपना सामान समेटा और नए घर में शिफ्ट हो गए और अम्मी अब्बू के दुखी दिलों की परवाह किए बगैर चले गए। भाभी तो दोबारा इधर आई ही नहीं। अफान ने रुककर मेरे चेहरे के तासुरात को देखा। इसके बाद छोटे भैया की बारी थी, जिनकी मंगनी बचपन ही से हमारी खाला की बेटी से तय थी। बड़ी भाभी की दुख भरी दास्तान का असर इधर भी हो चुका था। खाला शादी की तारीख देने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रही थी। आपा, आप मेहरू को, इतने तो अदारे बन गए हैं आजकल, किसी अदारे में दाखिल करवा दें, शायद इसकी हालत कुछ बेहतर हो जाए। पहले ही इसने ताहिरा के साथ इतनी ज्यादती की है। मोना तो है भी कमजोर दिल की, वो बातों बातों में सुना जाती। नेहरू के अब्बू नहीं मानते। बहरहाल उन्होंने मोना के लिए ऊपर वाला पोर्शन तैयार करवा दिया है। मोना ऊपर ही रहेगी, इसका मेहरू से इतना वास्ता नहीं पड़ेगा। अम्मी की बात पर खाला के दिल को काफी तसल्ली हो गई थी और उन्होंने शादी की तारीख दे दी। शादी हो गई, मगर मेहरू का आजार मोना के लिए मौजूद था। मेहरू अक्सर नजर बचाकर ऊपर चली जाती और मेहरू के सारे सेटअप को अपसेट कर आती। फिर मोना का वावेला कम होता, भैया की चीखों पुकार ज्यादा। आखिर आप इस पागल को पागल खाने क्यों नहीं छोड़ाते? आखिर कब तक हम इसका पागलपन झेलें? मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। वो अम्मी अब्बू के सामने बिला खौफ चिल्लाते। मियाँ, तुम्हारी बर्दाश्त की हद तमाम हो रही है तो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं मेहरू को किसी पागल खाने दाखिल नहीं कराऊंगा। अब्बू साफ जवाब दे देते। फिर ये जंग रोज ही होने लगी। अब अगर मेहरू कुछ ना भी करती तो भी मोना का मिजाज हर वक्त बिगड़ा ही रहता। मगर अम्मी ने जेब आपी का रिश्ता तय कर दिया। इसमें भी 100 रुकावटें आईं। बहन ऐसी है, कहीं जेब के बच्चों में असर ना आ जाए। और एक ने डरकर जवाब दे दिया। अम्मी बेबसी से देखती रह गईं। बिल आखिर अम्मी ने अपने एक दूर परे के कजन, जो कि कराची में रहते थे, उनके बेटे से आपी का रिश्ता तय कर दिया। अब्बू ने आपी की शादी पर ही छोटे भैया को प्लॉट ले दिया और साथ में कुछ रकम भी दे दी। तुम बड़े आराम से अपना घर तैयार करके जा सकते हो। इस घर के तरके में अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। ये घर अब सिर्फ अफान और जेब का है, और मेहरू का तो है ही। अब्बू ने जेब आपी की मेहंदी की रात प्लॉट के पेपर्स और रकम छोटे भैया को थमाते हुए कहा। उनके लिए इतना ही काफी था। उन्होंने कुछ और रकम इकट्ठी की और आहिस्ता आहिस्ता घर बनवाना शुरू कर दिया। अब्बू जेब आपी की शादी के बाद सिर्फ 6 माह जिंदा रहे। अल्लाह ने उन्हें मेरी खुशी देखने की मोहलत ही ना दी, वरना तुम देखती वो किस मोहब्बत और खुशदिली से तुम्हारा इस्तकबाल करते। वो बरमला सबसे कहा करते थे, देखना मेरे अफान की दुल्हन इस घर की असल बहू होगी, मेहरू की असल भाभी। मेरे रिश्ते के सिलसिले में कोई रुकावट इसलिए भी ना हो पाई कि मेहरू इन दिनों जेब आपी के पास कराची गई हुई थी। 1.5 माह इधर ही रहकर आपी के साथ शादी में शिरकत के लिए आई, इसीलिए शायद तुम्हें इसके बारे में इल्म नहीं हो सका। वैसे हमने छुपाया नहीं था। अम्मी ने तुम्हारी अम्मी से मेहरू का जिक्र कर रखा था, वो शायद तुम्हें बताना भूल गई थी। इतनी बड़ी बात और वो मुझे बताना भूल गई। मैं दिल में झुलस कर रह गई। अब सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, नींद भी बहुत आ रही है। तुम मुझे इसलिए भी पसंद आई हो कि तुम में बर्दाश्त बहुत ज्यादा है, मुतहम्मिल मिजाज हो। भाभी और मोना की तरह कम ज़र्फ नहीं कि इस मासूम से ख्वाम और खाक की प्रकाश रख लो। सारा, मेहरू बहुत अच्छी है, बहुत मासूम। वो बिल्कुल बच्चों की तरह है। अगर उससे बुरा सलूक करो तो वो रिएक्ट करती है, वरना उसका वजूद बिल्कुल बेज़रर है। तुम बिल्कुल भी उसके मुतल्लिक जहन पर कोई बोझ ना लेना। अम्मी को मुझे तुम अम्मी को मुझसे अम्मी को और मुझे तुमसे उम्मीदें हैं। ओके, गुड नाइट। वो सारी उम्मीदों
और खुश फहमियों का अंबार मुझ पर लाद कर मजे से करवट लेकर सो गए, ये देखे बगैर कि अब मेरी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। उसके बाद मेरी जिंदगी की अलमिया कहानी शुरू होती है, जो मेहरू के वजूद के दुख पर शुरू होकर मेहरू पर खत्म होती है। कोई मुझसे पूछे दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ कौन सी है, तो मैं कहूंगी मेहरू का वजूद, उसका होना। हनीमून के बाद मैं अम्मी के घर एक हफ्ता रह आई थी। उसके 2-3 दिन बाद अम्मी ने मुझसे खीर पकवाकर इर्द गिर्द के घरों में भिजवा दी और मुझे बकायदा चूल्हा चौका सौंप दिया, क्योंकि मेरी शादी को 1 माह हो चुका था। दावतें भी तमाम हो चुकी थी और बोर के लड्डू भी खाए जा चुके थे, बल्कि हजम हो चुके थे। मैं हड हराम थी, न कामचोर और न सुस्त, मगर मेहरू, उफ, काश मेरी शादी अफान से ना हुई होती। मैं मेहरू को देखकर ये तकलीफ दे ख्वाहिश भी कर गुजरती कि अब कम अज कम अफान के बगैर जीने का तस्वुर भी मेरे लिए मौत से बढ़कर था। मगर मेहरू का क्या करूं, ये मुझे नजर ना आए, मगर ऐसा हो नहीं सकता था। अफान आम दिनों में तो शाम को लेट ही आते थे, इसीलिए लंच साथ ही देना पड़ता था, मगर फ्राइडे और संडे को वो लंच घर पर ही करते थे। इसीलिए इन 2 दिनों में मैं खाने में खास एहतमाम करती थी। उस दिन भी जुमा था और मैंने अफान की फरमाइश पर कीमा भरे करेले बनाए थे और साथ आलू शोरबा। मुझे किचन में 3 घंटे लग गए। मैंने रोटियां पकाकर हॉट पॉट में रखी और खुद नहाने के लिए अपने कमरे में आ गई। अफान आ चुके थे और जुमा पढ़ने गए हुए थे। अम्मी अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। ये मेहरू की बच्ची कहाँ है, काफी देर से मुझे नजर नहीं आई। अपने कमरे की तरफ आते हुए मुझे ख्याल आया और जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा, मेरी बेख्तियार चीख निकल गई। मेहरू ने सारा कमरा तहस नहस कर रखा था। मेकअप का सारा सामान खुला हुआ और बिखरा हुआ था। सारी लिपस्टिक्स खुली हुई थी। ड्रेसिंग टेबल का शीशा नजर नहीं आ रहा था। लिपस्टिक से उसने सारे शीशे को गुलनार कर रखा था। बेडशीट, पर्दे, सब पर ही तबाह आजमाई की थी उसने। और उसका अपना मुंह किसी जोकर से कम नहीं लग रहा था। परफ्यूम की खुली शीशियां कुछ नीचे गिरी थीं, कुछ बेड पर, और एक उसके हाथ में थी, जिससे वो अपने बालों में स्प्रे कर रही थी। सारे कमरे में खुशबुएं ही खुशबुएं थीं। मुझे देखते ही उसकी कंचों जैसी आंखों में और चमक आ गई। हाँ 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 भाभी, ये अच्छी है, ये मैंने किया है, मेहरू ने, अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जोर से तालियां पीटने लगी। आई शेड की किट खुली पड़ी थी। आधे शेड नीचे कारपेट पर लुढ़के हुए, आधे ड्रेसिंग टेबल पर ही थे। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ भाभी, मैं अच्छी दुल्हन। वो बेइख्तियार जोर जोर से हंसी जा रही थी और मैं वहीं चौखट पर बैठकर बेबसी से रोने लगी। हैं, ये तुम इधर क्यों बैठी हो? उसी वक्त अफान आ गए। मुझे यूं बैठे देखकर हैरत से बोले। फिर जो उनकी नजर कमरे पर और मेहरू पर पड़ी तो वो उछल ही पड़े। मेहरू की बच्ची, ये क्या किया तुमने? वो जोर से चिल्लाए। भाई, मैं अच्छी हूं ना, है ना? मैंने ये सुर्खी लगाई, इधर इधर भाभी जैसी, मैं प्यारी हूं ना? वो अपने चेहरे पर हाथ फेरकर हंसे जा रही थी। अम्मी, अम्मी, इधर आकर देखें, इस मेहरू की बच्ची ने कमरे का क्या हशर किया है। अफान चिल्लाए। तुम उठ खड़ी हो, इस तरह क्यों बैठी हो? उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर उठाना चाहा। मैं और धुआंधार रोने लगी। क्या हुआ, क्या किया है मेहरू ने? अम्मी हवास भागता सी भागी आई। तेरा सत्यानाश मेहरू, तुझे कब अकल आएगी? ना मुराद, और कितनी मेरी जिंदगी अजाब करेगी? तुझे मौत भी नहीं आती मनहूस? अम्मी ने कमरे का हशर देखकर मेहरू को पीटना शुरू कर दिया। मैं कुछ नहीं किया, मैं अच्छी, हाँ अम्मी, कोई बात नहीं। वो पिटते हुए बोली जा रही थी। अम्मी, इसको क्यों मार रही हो? ये तो बेवकूफ है, इसे क्या पता। मत मारे आप इसे। अफान ने जल्दी से आगे होकर अम्मी के हाथ पकड़ लिए। ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, खबीस रूह। इसने मेरी जिंदगी से हर खुशी, हर मजा फना कर दिया, फिर भी नहीं मरती। इतनी दुनिया मरती है और लोग गाजर मूली की तरह करते हैं। किसी की आई इसको क्यों नहीं आती? मेरे सीने का रोग। अम्मी अफान से लिपट कर रोने लगी। अम्मी प्लीज हौसला करें। हर इंसान अपनी लिखी उम्र जीता है, आप इसे क्यों बद्दुआएं दे रही हैं? कभी तो समझ आएगी उसे भी। आप मत रोएं, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। वो माँ को गले लगाए उन्हें दिलासे दिए जा रहा था और रोती बिलखती बीवी नजर नहीं आ रही थी। मैं गुस्से में पैर पटकती बाहर निकल गई। फिर दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरा कमरा ठीक किया। जो मेकअप ठीक हालत में था उसे कैबिनेट में रखा और जो खराब हो गया था उसे डस्टबिन में। मैं नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए शाम तक पड़ी रही। अम्मी ने अफान ने मेरी बहुत मिन्नतें की खाना खाने के लिए, मगर मैंने एक ही जिद पकड़ रखी थी कि मुझे भूख नहीं। सारा प्लीज अब तो उठ जाओ, शाम हो चली है। देखो, वो इतनी अकल, इतनी सेंस रखती तो रोना किस बात का था? देखो, माफ कर दो उसे मेरी खातिर।
चलो उठो, मैं तुम्हें सारा मेकअप नया ला देता हूँ, प्रॉमिस। चलो तुम मूड तो ठीक करो, अभी चलते हैं। आफान मेरी मिन्नत कर रहे थे। आपको मेरे मूड की क्या परवाह, जब दोपहर का खाना खा लिया माँ के साथ, सारा दिन भी खुशगपियों में गुजार लिया, मैं क्या लगती हूँ आपकी? आप चले जाएं यहाँ से। मैं तड़प कर परे हो गई। तुम्हारी जान की कसम, जो 3 लुकमों से ज्यादा खाया हो, वो भी सिर्फ अम्मी की खातिर। उन्होंने दवा जो लेनी थी, अम्मी अभी दोपहर से रो रही हैं मेहरू की हरकत की वजह से। मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा गुस्सा और खराब मूड इन्हें और रंजीदा कर रहा है। प्लीज अब तो उठ जाओ मेरी खातिर। चलो आज बाहर डिनर करेंगे, तुम्हें शॉपिंग भी करवा दूंगा और खूब लंबी ड्राइव भी करेंगे। अगर तुमको घर जाना हो तो वापसी पर कुछ देर उधर भी रुक जाएंगे। वो मुझे मनाने के लिए हर बुरा आजमा रहे थे। कुछ मेरा दिल नरम था, कुछ अम्मी के रोने का सुनकर शर्मिंदा हुई, कुछ शॉपिंग और डिनर का सुनकर। फिर मैंने ज्यादा मिन्नतें नहीं करवाईं और उठकर बैठ गई। आप हर रोज तो मुझे शॉपिंग नहीं करवा सकेंगे, रोज तो ये हरजाने नहीं भर सकेंगे। मासूम मेहरू की नादानियों का मुझे कोई हल बताएं। मैंने हनूज मूड खराब कर रखा था। आकर सोचते हैं ना उसका हल दोनों मिलकर। तुम मेरा साथ देती हो तो फिर मेरा दिमाग भी खूब चलता है। तुम यूं रूठ कर मुंह बसोर कर बैठ जाती हो तो साथ मेरी अकल का काम ही नहीं करती। चलो रास्ते में मशवरा करेंगे। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, फिर अम्मी से मिलकर चलते हैं। आज खूब इंजॉय करेंगे। तुम तैयार होकर आ जाओ, मैं अम्मी के पास हूँ। वो कहकर चले गए तो मैं भी हल्के दिल के साथ तैयार होने चल दी। शॉपिंग, लंबी ड्राइव, डिनर और आफान की मोहब्बत भरी कंपनी। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ रहा था। मगर ये खुशियां भी तो लम्हाती थी। अफान हर नुकसान पर मुझे इस तरह चेयर अप नहीं कर सकते थे। वैसे भी वो कौन सा लैंडलॉर्ड थे, तनख्वाहदार मुलाजिम थे। गिनी चुनी रकम हाथ आती थी महीने भर की मुशक्कत के बाद। वो तो नए नए दिनों का चार्म था। उन्होंने मुझे मेकअप का काफी सामान भी खरीद दिया और डिनर भी करा दिया। मगर उस रोज जब मेहरू ने मेरा नया कीमती जहेज का सूट तबाह किया, जो मैंने प्रेस करके बेड पर रखा था, शाम को मेरे भतीजे की सालगिरह थी, मुझे पहन कर जाना था। मैं नहाने गई और जब बाहर आई तो देखा मेहरू के हाथ में कैंची थी और मेरे कीमती वेलवेट के सूट के टुकड़े। भाभी, इतने सारे रुमाल, हे, इतने ज्यादा रुमाल। वो जोर जोर से तालियां पीटने लगी, साथ साथ टुकड़ा हवा में उछाल रही थी। मेरा दिल जैसे नीचे ही नीचे डूबने लगा। ये सूट मेरी खाला सऊदिया से लाई थी। उस पर मैंने सबसे महंगा काम करवाया था। सर्दियों का तो अभी आगाज ही हुआ था, इसलिए पहनने का मौका भी आज ही आया था। और मेहरू ने उसे बड़े आराम से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि कहीं जहर खाकर सो रहूं या गहरे पानी में कूद जाऊं, कि इस मनहूस पागल से मेरी जान छूट जाए। आखिर अल्लाह ने इस मनहूस को पैदा क्यों किया? आखिर इसको पैदा करने का मकसद क्या है? वो उसे उठा क्यों नहीं लेता? रोते रोते मुझे शाम से रात हो गई। आफान की मिन्नतें, अम्मी की शर्मिंदगी, माफी, कुछ भी मेरा मूड ठीक ना कर सकी। मैं मुंह सर लपेटे बिस्तर पर ही पड़ी रही। घर से 2 बार फोन आया, भाईजान और भाभी का, फिर अम्मी का। मैंने तबीयत की खराबी का बहाना कर दिया। मैं तुम्हें कल ऐसा ही सूट ला दूंगा, प्लीज उठो तो कुछ और पहन लो। सारा यू फंक्शन मिस मत करो, तुम्हारा इकलौता भतीजा है, तुम्हारे भाई भाभी क्या सोचेंगे? आफान ने मुझे याद दिलाया। मैं आग लगा दूंगी सूटों को और खुद को भी। अब मुझे जाने का कोई मत कहे। मैं जोर से चीखी और तकिए में मुंह छुपाकर घुट घुट कर रोने लगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बेजान चीज के लिए जिंदा लोगों की मोहब्बतों को इग्नोर कर रही हो तो करो। अफान कंधे उचकाकर बाहर चले गए, मुझे रोता धोता छोड़कर। मैं और बिलक बिलक कर रोने लगी। और ऐसे नुकसान तो आए दिन होने लगे। अब तो मैं रोती भी नहीं थी। नेहरू को अम्मी की नजर बचाकर एक आध हाथ जड़ दिया करती थी। इस पर खूब चिल्लाती, बर्तन पटकती, अफान से झगड़ा करती, अम्मी से सीधे मुंह बात ना करती, उनके प्यार और मोहब्बत को चापलूसी गर्दानती। इसीलिए तो ये बुढ़िया इस कदर मीठी बनी हुई थी मेरे साथ, ये जहन्नुम जो दहका रही थी। मैं दिल ही दिल में खूब कलसती। 2 बार रूठ कर मैके जा बैठी। वहां अम्मी की नसीहतें, बहलावे। बेटा, और तो कोई दुख नहीं ना तुम्हें वहां? अफान मोहब्बत करता है, सास अच्छी है, खाना पीना आला है, सर पर छत है, अपने घर का मान है। अब अगर वो पागल है तो उसमें इन बेचारों का क्या कसूर? उस पागल को उन्होंने तो अल्लाह से दुआ मांगकर नहीं लिया था। खुदा सबको अपनी अमान में रखे, ये सहना है तो किसी के साथ भी हो सकता है। बेटा हौसला करो, गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। तुम एहतियात किया करो अपनी चीजों के मामले में। इसको समझने की कोशिश करो, वो इतनी पागल नहीं, प्यार करोगी तो इतना तंग नहीं करेगी। अम्मी, मुझे पागलों का कोई तजर्बा नहीं, ना ही मैं ऐसी कोई कोशिश करूंगी। मैं झट से जवाब दे देती। प्यार से उस पागल का दिमाग और आउट हो जाता है। ऊपर से भाई माँ कुछ सुनने को तैयार नहीं। एक मैं ही फालतू थी
एक मैं ही फालतू मिली थी आपको, उठाकर कुएं में धक्का दे दिया। अंधी थी मैं या लूली लंगड़ी थी? आपने जो बगैर सोचे समझे मुझे इस दोजख में धकेल दिया। मैं बेख्तियार अपनी बेबसी का सोचकर रोने लगती। फिर आफान की मिन्नतें, मेरी सास की माफियां। बिल आखिर में घर वापस आ जाती। मेहरू दरवाजे में ही मुझसे लिपट जाती, मेरा दुपट्टा मरोड़ मरोड़ कर मुट्ठी में लपेटे जाती। भाई मेरी भाभी आ गई मेरी भाभी आ गई अम्मी, मेरी भाभी। वो छलांगे मारने लगती और मैं जो मुश्किल अपना मूड दुरुस्त करके आती थी फिर से जलना शुरू कर देती। मेरी जान, आजकल तुम्हारे लिए ये जलना कुड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। खूब खुश रहो, खाओ पियो एंजॉय करो। मेरी मोहब्बत में कोई कमी देखो तो फौरन गिला करो, बस जलो कुड़ो नहीं, वरना हमारा बच्चा काला कलोटा होगा, बिल्कुल स्याह। और मुझे काले बच्चे जरा पसंद नहीं। आफान मुझे छेड़ते, उस घर में मेरे लिए और है ही क्या सवाए जलने कुड़ने के। मैं फौरन जवाब देती, मेरी जान तंग दिल क्यों होती हो? मेहरू को इतना सर पर क्यों सवार करती हो? उससे जरा मोहब्बत से, नरमी से पेश आओ। यकीन करो वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत मासूम दिल है उसका। थोड़ा सा प्लीज अफान। मेहरू मेहरू मेहरू, अब तो मुझे सोते में भी यही नाम सुनाई देने लगा है। प्लीज स्टॉप इट, कोई लम्हा तो मुझे सुकून लेने दे। मैं चिल्ला उठी। ओके रिलैक्स, वो हाथ उठा देते। चलो तुम्हें कहीं घुमा लाता हूँ, वो फौरन ऑफर करते। तो मुझे इस जहन्नुम से निकलने का यही रास्ता नजर आता। झट से तैयार होने चल देती। शुरू शुरू के दिन थे, मेरी तबीयत खूब गिरी गिरी सी रही। किसी काम में जी ना लगता, बस दिल चाहता बिस्तर पर पड़ी रहूं। मुश्किल कुकिंग करती, काम के लिए मुलाजमा आ ही जाती थी। आजकल अम्मी ने कपड़े धोने के लिए भी मुलाजमा रख ली थी। सारा तुम आजकल रेस्ट करो, कुकिंग भी खुद कर लिया करूंगी, वो मुझसे खूब प्यार जताती। मैं भी अब कोशिश करती कि मेहरू के भूत को अपने सर पर सवार ना करूं। कमरा बंद करके किचन में काम के लिए जाती। आराम के लिए कमरे में जाते ही लॉक लगा लेती, मगर कभी कभी वो भी खूब तंग करने पर उतर आती। मैं दोपहर को आराम कर रही होती, वो दरवाजे के साथ कोई ना कोई चीज लाकर टकराने लगती। कोई एड़ी वाली जूती ले आती, उसे जोर जोर से दरवाजे से मारे जाती। कभी फर्श पर कुछ ठोकने लगती। अजीब बदतमीज बच्चों जैसी तकलीफ दे आदतें थी उसकी। मेरी सोते में आंख खुल जाती और तबीयत बुरी तरह बेजार हो जाती। लाख कोशिश के बावजूद जलने कुड़ने से खुद को बाज ना रख पाती। आफान, मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर चली जाती हूँ। इधर मेरा जहन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा। आखिर थककर मैंने आफान से कहा, सारा अभी एक हफ्ते पहले तो तुम 15 दिन रह कर आई हो, अम्मी नहीं मानेंगी। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर मैं उनसे इजाजत ले दूंगा। वो प्यार से मुझे समझाते। वहां के 15 दिन मुझे एक दिन के बराबर लगते और यहाँ का एक हफ्ता एक साल के बराबर। हाँ, कुछ दिनों तक मैं यकीनन पागल हो जाऊंगी। ये मेहरू की बच्ची, मैंने दांत किचकिचाए। ओके, मैं अम्मी से कहूंगा वो दोपहर को उसे अपने साथ लिटा लिया करेंगी ताकि तुम सही तरह से रेस्ट कर सको। उसे तो रात को नींद नहीं आती, आधी रात को भी किसी बदरू की तरह डरावनी आंखें लेकर पूरे घर में घूम रही होती है। दोपहर में वो क्या सोएगी? मैं मुंह में बड़बड़ाई। हाँ, मेहरू को नींद बहुत कम आती है, यही तो दिमागी कमजोरी की अलामत है। अफान ने फौरन बहन की हिमायत की। हाँ, उसकी दिमागी कमजोरी का बदला आप मुझसे ले रहे हैं, मुझे पागल करके दम लेंगे। मैं जोर से बोलते हुए करवट लेकर लेट गई। कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफी बेहतर थी। तबीयत का चिड़चिड़ापन भी कासा कम हो गया था। नेहरू आजकल गुमसुम सी रहती थी और ज्यादातर अम्मी के कमरे में घुसी रहती। दिन में 3-4 दफा नहाती और बार बार कपड़े बदलने पर अम्मी से खूब डांट खाती। मुझसे आजकल उसका वास्ता कम ही पड़ता था, मगर पागल तो फिर पागल होते हैं, कब दौरा पड़ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं उस रोज चूल्हे पर हंडिया रखकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में कुछ काम किया और दोबारा किचन में गई हंडिया देखने। वहां का मंजर अजब था। मेहरू लकड़ी के चमचे को जलते चूल्हे पर रखे खड़ी थी। लकड़ी के चम्मच से अब शोले निकल रहे थे। वो मजे से उन शोलों को देख रही थी। फौरन ही उसने हाथ घुमाकर ऊंचा किया और जलते चम्मच को किसी मशल की तरह हाथ में पकड़ लिया और पलट कर वो जलता चम्मच मेरे करीब ले आई। भाभी ये देखो, ये मोमबत्ती है ना मोमबत्ती? बोलो है ना, ही। वो चम्मच मेरे मुंह के करीब करती जा रही थी। मेहरू पागल हो गई हो, छोड़ो इसे, आग लग जाएगी। मैंने चम्मच उसके हाथ से छीनना चाहा। मैं तुम्हारे सर पर रख दूंगी, भाभी का सर जलेगा, मोमबत्ती की तरह चमकदार वह चम्मच मेरे सर की तरफ लेकर बढ़ी। मैंने उसे जोर से परे धक्का दिया। मेहरू की कंचों जैसी चमकीली आंखों में पल भर में खून उतर आया। मेरे धक्के से वो अपनी जगह से हिली तक ना। उसने जलता चम्मच पीछे घुमाकर सिंक में फेंक दिया और मुझे एक जोरदार धक्का दिया। मैं किसी गेंद की तरह उछलती हुई दरवाजे से जा टकराई।
मेरी कमर में दरवाज़ा बुरी तरह से लगा था और पेट में ज़ोरदार धचका। मेरे मुंह से दिलखराश चीखें निकलने लगीं। महरू ने मुझे ज़ोरदार लात रसीद की और वहां से भाग गई। मैं कराहती हुई फर्श पर गिरती चली गई। शायद कुदरत को आने वाले बच्चे की जिंदगी मंजूर थी, जो उसी वक्त मेरे बड़े जेठ अम्मी से मिलने आ गए। मैं नीम बेहोश थी। अम्मी और बड़े भैया मुझे करीब के क्लिनिक में ले गए। फौरी ट्रीटमेंट मिलने की वजह से मेरी हालत संभल गई। बड़े भैया की जताती हुई नजरें अम्मी को बहुत कुछ कहे जा रही थी, और अम्मी तो जैसे जमीन में गड़ी जा रही थी। अभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती आप इसके घर वालों को। अगर आप इसे क्यों आखिर आप इसे क्यों पागल खाने में दाखिल नहीं करवाती? ऐसे क्या लाल जुड़े हैं इसमें जो इसे सीने से लगा कर बैठी हैं? उसकी खातिर बेटों को निकाल बाहर किया, और ये भी तो किसी की बेटियां हैं जो उसके पागलपन का निशाना बन रही हैं। अम्मी कुछ तो खुदा का खौफ करे। मैं आंखें बंद किए लेटी थी जब बड़े भैया अम्मी पर बरस पड़े। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश ने पाबंद कर रखा है। जो मर्जी हो जाए, मेहरू को कभी पागल खाने में ना भेजना। वो पागल नहीं है, बस उसमें समझ कम है। पागल होती तो इसे अपने पराई की पहचान कब होती? हम सबको अब तक मार ना चुकी होती? अभी आपके ख्याल में मारने की कोई कसर बाकी है? वो तन से बोले। वो जानों से खेली है, और आप अब भी कहती हैं कि वो पागल नहीं, समझ कम है। और पागलपन किसे कहते हैं? पागल खानों की हालत देख रही है ना तुमने? वहाँ इंसान को इंसान कब समझते हैं? जानवरों की तरह रखते हैं। मैं जीते जी अपनी बच्ची पर यह जुल्म नहीं होने दूंगी। पहले ही बचपन में इसकी तरफ से गफलत बरतने पर कुदरत ने इतनी बड़ी सजा दी है मुझे। उम, इसकी तो तमाम जिंदगी दांव पर लग गई, और मैं अपनी नज़रों में अलहदा मुजरिम ठहरी। मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे जीते जी कोई भी उसे पागल खाने में दाखिल करवाने का नहीं कह सकता। हाँ, जब मैं मर जाऊं फिर इधर मर्जी से उसे धक्का दे देना। अम्मी हिचकियों के साथ रोने लगी। जैसे आपकी मर्जी। कल को इसने किसी की जान ले ली तो सोच लें। इससे ज्यादा आपको ना रोना पड़ जाए। वो कहकर उठ गए। अम्मी उसी तरह रोती रहीं, और मैं आंखें बंद किए अपने नसीब को रोती रही। आफान भी थोड़ी देर में आ गए, खौफ हरासा, मगर मैंने आंखें खोलकर उन्हें भी ना देखा। वो तो पक्के माँ और बहन के चमचे थे। उस शख्स के सामने मजलूमियत की तस्वीर बनने से फायदा। 2 बार उन्होंने मुझे आवाज दी, मगर मैंने आंखें नहीं खोली। पता नहीं क्यों उस वक्त मेरा उस घर के किसी फर्द को देखने का जी नहीं चाह रहा था। रह रहकर ख्याल आता कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये जालिम लोग तब भी रहम ना खाते। फिर मैंने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। शाम तक मुझे क्लिनिक से डिस्चार्ज कर दिया गया। अफान ने मुझे सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। मुझे मेरी अम्मी के घर उतार दें। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो मैंने कहा, क्यों? उन्होंने हैरान नजरों से मुझे देखा। अम्मी भी मेरी सीट की तरफ झुकाई। क्यों बेटा, अभी तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ठीक होगी तो चली जाना, वो उसी मीठे लहजे में बोली। मुझे अभी और इसी वक्त जाना है, नहीं तो मुझे यहीं उतार दें, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं दो टोक अंदाज में बोली। आज की रात आराम कर लो, कल सुबह मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगा। आफान ने नरमी से कहा। तो आप मुझे ड्रॉप नहीं करेंगे अम्मी के घर? मैंने शदीद गुस्से के आलम में उन्हें देखा। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। आफान, गाड़ी इधर ही मोड़ लो। मेरे तेवर देखकर अम्मी फौरन नरमी से बोली। जैसे ही गाड़ी अम्मी के घर के गेट के आगे रुकी तो मैं तंदनाती हुई नीचे उतरी और खुले गेट से अंदर चली गई। मुड़कर इन माँ बेटे को अंदर आने का भी ना कहा। उस वक्त मैं उनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहती थी। अम्मी सामने ही खड़ी गमलों को पानी दे रही थी। मुझे यूं आते देखकर हैरान रह गई। मैं दौड़ कर गई और उनके गले से लिपट कर चहकू पहकू रोने लगी। क्या हुआ सारा, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। यूं इस तरह आते ही रोने लगी हो? अम्मी घबरा कर बोली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनसे लिपटी रोती रही। फिर मैंने अम्मी से साफ लफ्जों में कह दिया था कि मैं उस जहन्नुम में दोबारा नहीं जाऊंगी डिलीवरी तक, बल्कि उसके बाद भी इधर ही रहूंगी जब तक ये माँ का चमचा मुझे अलहदा घर नहीं ले देता या इस मनहूस को इधर से दफान नहीं कर देता। अम्मी भी सारा वाकया सुनकर डर सी गई कि इस हालत में अगर दोबारा कोई और हाथापाई कर गुजरे तो, इसीलिए उन्होंने मुझे ना जाने दिया, कम अज कम डिलीवरी तक। उसके बाद का उन्होंने वाजे तौर पर कुछ ना कहा। भाईजान ने भी जोरों शोर से मेरी हिमायत की और मुझे उधर भेजने से इनकार कर दिया। भाभी अलबत्ता कुछ नहीं बोली थी, और मुझे उनके बोलने या ना बोलने की परवाह भी नहीं थी। फिर आफान आते रहे। अम्मी भी 2-4 बार आई, मगर मैंने कभी उनसे ढंग से बात ना की। जब वो दिल से मेरे साथ मुखलिस ही ना थी, जब उन्हें मेरी जान या मेरे बच्चे की कोई परवाह ही ना थी, तो मैं क्यों उनकी चापलूसी करती फिरती? हाँ, अफान के मामले में अम्मी ने मुझे सख्ती से कह रखा था कि उसके साथ सीधे मुंह बात करना, उसके साथ बिगाड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें बहरहाल उसके साथ जिंदगी गुजारनी है, और इतनी समझ तो मुझ में भी थी।
आफान आते तो मैं उनको पूरा वक्त देती, रात का खाना खिलाए बगैर ना भेजती। किसी दिन वो भी मुझे बाहर ले जाते, डिनर करवा देते, मगर ऐसा कम ही होता था। ज्यादातर मैं उनकी खातिर मदारत घर पर ही कर देती थी। ऑफिस से तो वो मुझे रोज ही फोन किया करते थे। शाम को घर आना होता तो वो मुझे बता देते। मैं अम्मी को बताकर उनके पसंद की डिशेस तैयार करवा लेती। और इन दावतों के दौरान भाभी के मुंह के जाविये कैसे होते थे, मैं कम ही गौर करती। और मुझे गौर करने की जरूरत भी नहीं थी। अम्मी जो थी मेरी हर मौके पर हमायत करने वाली। फिर अल्लाह अल्लाह करके वो घड़ी भी आ गई जिसका सबको इंतजार था। मैंने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था। आफान बहुत खुश थे, मेरी सास भी और घर वाले भी। अगरचा मेरा दिल कुछ बुरा जरूर हुआ था क्योंकि मुझे बेटे की तवक्का थी, मगर फिर सबको खुश देखकर और बच्ची की मनमोहनी सूरत देखकर मैं भी खुश हो गई। मेरी सास ने सारे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी। भाई पोती है तो क्या हुआ, मेरे आफान की पहली औलाद है, वो खुशी खुशी सबसे कह रही थी। अब इसमें खोट कितना था और उनके खुशबाश चेहरे से अंदाजा नहीं लगा सकी। मेहरू को वो कभी साथ ना लाती थी और मैंने कभी उसके बारे में पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। फिर आगे 1.25 महीने की एक लंबी मुद्दत चलेगी। अम्मी अंदर ही अंदर मेरी रुखसती की तैयारियां करने लगी और मैंने देखा कि भाभी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रही थी। सारा, देखना तो ये सूट कैसा है, फालसाई रंग तुम पर खूब उठता है। मैं सोच रही हूँ इस पर हल्का सा काम करवा दूँ। बाकी के 3 सूट तुम अपनी मर्जी से ले लेना। एक वेलवेट का सूट मैं पहले ही खरीद चुकी हूँ। मायरा के कपड़े तो उसके मामू और मुमानी जाकर ले आए थे। इसके खिलौने और बिस्तर रह गए हैं। अम्मी पुरजोश अंदाज में फालसाई रंग का रेशमी सूट हाथ में लिए मेरे पास आई। मैंने एक सरसरी सी निगाह सूट पर डाली और दूसरी उनके चेहरे पे। अम्मी आप ये अभी से किस लिए बना रही हैं? मैंने सर्द लहजे में पूछा। है, तुम्हारा चिल्ला नहाने के लिए, उसके बाद क्या ससुराल खाली हाथ जाओगी? कौन जा रहा है ससुराल? मैंने चटक कर पूछा। क्या मतलब? वो माथे पर बल डालकर बोली। अम्मी मैं उस पागल खाने में नहीं जाऊंगी। वो पागल मुझे या मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा दे, आप ये चाहती हैं? मैं गुस्से से बोली। सारा, तेरा दिमाग ठीक है? वो पागल जरूर है मगर ऐसी भी कोई बात नहीं। आखिर एक दिन तो तुम्हें अपने घर जाना ही पड़ेगा। सारी जिंदगी तो माँ के घुटने से लगकर नहीं बैठोगी। वो अब के नरम पड़कर बोली। अम्मी मैं उधर नहीं जाऊंगी, आप अफान से कह दें मुझे अलग घर लेके दें, वरना मैं नहीं जाऊंगी। मैं हरदरम लहजे में बोली। अभी तक तेरा दिमाग ठंडा नहीं हुआ? अफान कोई लैंडलॉर्ड नहीं जो घर खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जबकि इसके पास इतना शानदार घर मौजूद है तो फिर वो ऐसी हमाकत क्यों करेगा? मेरी बच्ची यूं जज्बाती नहीं होते। डिलीवरी तक तुम्हारी जिद थी, सो उन्होंने मान ली और मैंने भी। इसके बाद अब कोई तुक नहीं बनती। तुम फजूल जिद ना करो तो अच्छा है। अगर ये जिद है तो जिद सही, मगर मैं नहीं जाऊंगी, कहकर मैंने मुंह फेर लिया। फिर जैसे ही मैंने चिल्ला नहाया अफान और मेरी सास अ, चिल्ला नहाया फिर जैसे ही मैंने चिल्ला नहाया अफान और मेरी सास मुझे लेने आ गए। अम्मी ने उनकी दावत का भरपूर इंतजाम कर रखा था। भाभी तो खैर खुशी बहुत थी, बार बार आकर मेरे पहने हुए सूट की तारीफ कर रही थी। मायरा को कार से उठाकर प्यार कर रही थी। रात का खाना सबने मिलकर खाया। मैं उस सारे किस्से के दौरान खामोश रही। अम्मी बार बार मेरा चेहरा देख रही थी। चलो भाई सारा, बेटी मेरी मायरा को भी तैयार कर दो। इतने महीनों से मेरा घर बेरौनक पड़ा है। मेरी मानो बिल्ली इधर जाएगी तो बाहर आएगी। वो मायरा को गोद में लेकर चूमते हुए बोली। मैं खामोश बैठी रही। उठो ना सारा, देर हो रही है, अफान ने आहिस्तगी से कहा। मैंने उनकी आंखों में उमड़ते मोहब्बत के समंदर से नजरें चुरा ली। अम्मी मेरे पास आकर बैठ गईं। चलो उठ जाओ अब, वो धीरे से बोली। अम्मी मुझे कहीं नहीं जाना, और इस घर में तो बिल्कुल नहीं। मेरी सर्द आवाज इतनी बुलंद जरूर थी कि कमरे में सब अफराद ने बखूबी सुन ली। क्या मतलब? अम्मी मसनूई हैरत से बोली। मतलब साफ है, मुझे उस घर में नहीं जाना। क्यों? अफान ने तुरशी से कहा। क्यों का सबब आप जानते हैं। मैं भी चबा कर बोली। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो घर तुम्हारा है, तुम ही इसकी मालकिन हो। फिर जाने से इनकार, जबकि मेरी सास ने धीमे खुशामदी लहजे में कहा। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, उसकी मालकिन आप हैं, आपकी बेटी। मेरे लिए वहां पे सिर्फ खौफ और दहशत है। मुझे अपनी और अपनी बच्ची की जान प्यारी है। मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे अलहदा घर लेकर दें। मैंने बराह रास्त अफान को देखकर कहा। अलहदा? अलहदा किस लिए बेटा? मुझसे? मैं तो और 2-4 सालों की मेहमान हूँ, और कौन है जिससे तुम्हें अलहदा होना है? वो दीवानी पागल मेरी बेटी। मेरे बाद बेशक उसे। मेरी सास रोते रोते उठकर बाहर निकल गई। सारा, अम्मी ने मुझे घूरकर सास के पीछे जाने का इशारा किया। मैं ढीठ बनी बैठी रही। देखो सारा, तुम मुझे बहुत अजीज हो, और मायरा भी, मगर मेरी माँ से बढ़कर नहीं। तुम्हारा घर अलहदा ही है, वो तुम्हारा ही घर है,
और अगर तुम उसको अपना ना समझो तो अलग बात है। बहरहाल मैं नए सिरे से तुम्हारे लिए कोई घर अरेंज नहीं कर सकता। तुम्हें आना होगा तो उसी घर में, उसी माहौल में, मेरी माँ और बहन के साथ। घर कोई सा भी हो, मेहरू हमारे साथ ही रहेगी। मेरे जीते जी तुम इसको कहीं और भेजने का सोचना भी नहीं। आज और ना कभी। जब भी तुम्हारा मूड बने घर आने का मुझे फ़ोन कर देना, मैं आकर ले जाऊंगा। खुदा हाफिज आंटी। अफान ने अजनबियत और बेगानगी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और खट से उठकर बाहर चल दिए, और चंद लम्हों बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हमाकत की तुमने अहमक लड़की, अम्मी ने मुझे गुरका। अम्मी, मैंने जो किया है दुरुस्त किया है। मैंने आपसे पहले ही कह रखा था। मैं कहकर उठ खड़ी हुई और मायरा को लेकर सोने चल दी। फिर दिन गुजरते चले गए। हम दोनों में से कोई भी अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं था। अफ़ान पहले की तरह फ़ोन करते, मेरी और मायरा की खैरियत दरियाफ्त करते, कभी हफ्ते 15 दिन बाद मिलने भी आ जाते, मगर मेरा मुतालबा मानने से साफ इनकारी थे। अब मैं उनके फ़ोन अटेंड करने भी छोड़ चुकी थी। वो घर वो घर में सा वो घर आते तो मैं सामने ना आती, मगर पता नहीं वो शख्स किस मिट्टी का बना था, उस पर कुछ असर होता नज़र नहीं आ रहा था। आखिर कब तक ये इधर विराजमान रहेगी? साल होने को आया है। नवाबजादी यूं जिद लगाकर बैठी है जैसे वो इसे अपना घर ले देगा। वो एक जिद्दी और अपनी बात का पक्का शख्स है। कभी इसकी बात नहीं मानेगा तो ये क्या हमारे सीनों पर मूंग तलती रहेगी इधर पड़ी। मैं मायरा को फीडर बनाने के लिए किचन की तरफ जा रही थी, मैंने भाभी की ऊंची आवाज सुनी। तो अब क्या करूं? धक्के देकर निकाल दूं? समझाया तो है इस कदर, नहीं मानती तो क्या करूं? भाईजान की आवाज आई। धक्के? हाँ, ढीठों को धक्के ही पड़ने चाहिए। हम भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। अपने घर के काम और इखराजात क्या कम है कि ये इजाफी बोझ भी मुसलसल हमारे सर पर है। और साफ बात है, आपकी वालदा की खिदमत वाजिब है, मैं जी जान से करने को तैयार हूँ, पर यह बाहर वालों की इजाफी खिदमतें मुझसे नहीं होती। साल भर से बेगम साहिबा की खिदमत कर रही हूँ, दूसरे चौथे रोज मियाँ को भी बुला लेती है और दावत का एहतमाम यूं करवाती है जैसे इधर अ, पैसे धरे हैं, और माँ जो उफ नहीं करती। मैं अब आपसे साफ कह रही हूँ, अगर ये हफ्ता 15 दिन नहीं जाती तो फिर मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दें। मैं भी कोई लावारिस नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सहती रहूं। भाभी ने आज जब्त और बर्दाश्त की सारी हदें फलांग दी थी। अच्छा, इस वक्त तो सो जाओ, मैं कल अम्मी से बात करूंगा, भाईजान ने कहा। मैं खुद इतने अफराद का बोझ उठाने से कासिर हूँ। मायरा का दूध इस कदर महंगा है और हफ्ते बाद खत्म। इधर यासिर और रबिया के स्कूल की फीस भी बढ़ गई है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। आखिर क्या करूं? भाईजान के गिले भाभी से भी बढ़कर थे। अपनी वालदा को बताए ना, जो बेटी को घुटने से लगाकर बैठी हैं। भाभी चमकी। अच्छा, कर लूंगा बात, सो जाओ अब। भाईजान सख्त उकताए हुए थे। मेरा जी चाहा यही यही जमीन शक हो और मैं इसमें गर्क हो जाऊं। मैं अपने ही घर में इस दर्जा पराई हो चुकी थी, एक बोझ की मानद कि मेरी माँ, मेरा भाई मुझे 6-8 महीने पास रखने पर बेजार हो चुके थे। अगर उनका बस चलता तो वो मुझे धक्के देकर निकाल बाहर करते। ये है इनकी मोहब्बत। मैं बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। लेकिन जो मर्जी हो जाए, मैं भी उस पागलखाने नहीं जाऊंगी। अब झुक गई अफान की जिद के आगे तो सारी उम्र झुकी रहूंगी। कभी सर उठाकर कोई बात नहीं मनवा सकूंगी। आखिर बड़े भैया और छोटे भैया भी तो अपनी बीवियों को लेकर अलहदा हुए हैं ना। ये ज्यादा माँ का फर्माबरदार है। कल मैं दो टोक बात करूंगी, मैंने अपने दिल में फैसला किया। अगले दिन मुझे शिद्दत से अफान के फोन का इंतजार था, मगर उनका फोन ना आया। ऑफिस टाइम खत्म होने से थोड़ी देर पहले मैंने हार कर फोन कर लिया। आपने फोन नहीं किया आज? मैंने छूटते ही पूछा। हाँ, याद नहीं रहा। एक तो मसरूफियत आज बहुत थी, दूसरा कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। बस अब उठकर घर ही जा रहा था। उनका लहजा सख्त थका थका सा था और आवाज भारी। खैरियत, क्या हुआ? मैंने यूं ही पूछा, वरना मेरा मूड उनकी मिजाज पुरसी का कतन न था। सर में बहुत दर्द है, गला भी दुख रहा है, टेम्परेचर सा महसूस हो रहा है। मौसम बदल रहा है ना, शायद इसलिए। मायरा ठीक है? जी ठीक है। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मेरा नहीं पूछेंगे? मैंने चंद लम्हों बाद जताकर पूछा। तुम्हारा? वो रुके। तुम ठीक तो हो? मुझसे बात कर रही हो? वो तो आप भी कर रहे हैं, मैंने फौरन कहा। बज़ाहिर बात करने के लिए सब कुछ ठीक होता है। मालूम नहीं, इस वक्त सर में बहुत दर्द है। पहेलियां मैं नहीं बूझ सकता। वो बेजार होकर बोले। मैं भी पहेलियां बुझवाने के मूड में नहीं हूँ। आपने क्या सोचा है? मैंने साफ कहा। किस बारे में? वो अनजान भरकर बोले। मेरे बारे में? मैं कब तक इधर पड़ी रहूंगी? ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। तुम कहो तो मैं अभी वापसी पर तुम्हें लेने आ जाता हूँ। आपको मालूम है ना, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैंने जोर से कहा। चीखो मत। और मेरे पास वही एक घर है, तुम्हें आना है तो उधर ही आना होगा, आज भी और कल भी। वही हट दरम अंदाज। मुझे ये मंजूर नहीं, मैंने भी दबे बगैर कह दिया।
तो फिर جو منظور ہے وہ بتا دو، میں کر گزروں گا۔ وہ جھٹ سے بولے، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، میں رو دینے کو تھی، وہ تو تم بھی نہیں کر رہی۔ دو ٹوک انداز۔ عفان آخر اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کچھ نرم پڑھ کر کہا۔ کس میں؟ علیحدہ گھر لینے میں۔ تمہارا گھر علیحدہ ہی ہے، صرف امی کا وجود ہے۔ پتہ نہیں کیسا بے حس مرد ہے یہ، میں زچ ہو گئی۔ صرف امی کا نہیں، آپ کو معلوم ہے جو تم چاہتی ہو سارا وہ تو تا قیامت نہیں ہوگا، اور جو دونوں بھائیوں نے کیا ان پر کچھ الزام نہیں، میں نے جتا کر کہا۔ ان کی اپنی سوچ، ان کا اپنا فعل، میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں۔ وہ کسی پوائنٹ پر کمزور نہیں پڑ رہا تھا۔ تو آخر کب تک میں ادھر رہوں گی؟ جب تک تمہارا مزاج ٹھکانے نہیں آ جاتا۔ آپ کو مجھ سے ذرا محبت نہیں۔ بالآخر میں نے عورت کا آخری ہتھیار آزمایا اور رونے لگی۔ محبت ہے تو تمہاری ضد نبھائے جا رہا ہوں۔ کیا ضد نبھا رہے ہیں؟ سارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ میں ادھر کیوں پڑی ہوں، رشتہ داروں کے سوال، تماشا بن گئی ہوں۔ میں نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ سب کو بتا دو اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں، خود تماشا بن رہی ہوں۔ وہ کٹور پن سے بولے، تو آپ کچھ نہیں کریں گے؟ جو تم کہو گی۔ دیکھو سارا، علیحدہ گھر تو ناممکن ہے، آخری صورت فیصلے کی بچتی ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہو گی تو میں وہ بھی کر دوں گا۔ بیویاں بہت مل سکتی ہیں مگر ماں دوبارہ نہیں مل سکتی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، میں خود اس کشمکش سے تنگ آ چکا ہوں۔ کب تک میری ماں میرے لیے روٹیاں پکاتی رہے گی اس بڑھاپے میں؟ تمہیں شرم نہ آتی ہو مگر مجھے شرم آتی ہے۔ تم نے جو فیصلہ کرنا ہے اچھی طرح سوچ لو اور پھر مجھے بتا دو۔ خدا حافظ۔ وہ تو آخری حد بھی چھونے کو تیار بیٹھے تھے۔ میں ریسیور پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ معاملہ سلجھنے کی بجائے اور الجھ گیا تھا۔ کچھ دن اور خاموشی سے گزر گئے، میں اندر ہی اندر جلتی کڑتی رہتی۔ امی کے انداز بھی بہت بدل گئے تھے، بہت بیزار سی تھیں وہ۔ ظاہر ہے انہیں بھابھی کے تیور دیکھ کر بہت کچھ بگڑتا نظر آ رہا تھا۔ بھائی جان بھی اب سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، اور یہ سب میری وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ ان کی بنی بنائی عزت خاک میں مل رہی تھی۔ بھابھی کل ایک ماہ کے لیے اپنے میکے جا رہی تھی۔ عفان کا فون نہیں آیا تھا۔ میرا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ علیحدگی تو بہرحال میں نہیں چاہتی تھی۔ اگلے روز ان کا فون آ گیا۔ تم نے جو سردیوں کے کپڑے مجھ سے کہے تھے تو وہ میرون سوٹ کیس میں نہیں ہیں۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا۔ لہجہ بالکل نارمل تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میرون میں نہیں، براؤن میں ہوں گے، نہیں تو پھر الماری کے اوپر والے کیبنٹ میں۔ میں نے کچھ نہیں جتایا۔ بھائی میں نے دیکھ لیے ہیں چاروں سوٹ کیس کھول کر، نہیں ہیں ادھر۔ ایسا ہے کہ میں تمہیں آفس سے واپسی پر پک کر لیتا ہوں، تم جا کر خود کپڑے نکال لو، پھر میں تمہیں واپس ڈراپ کر دوں گا۔ آج تو ویسے بھی موسم کافی سرد ہو رہا ہے، تمہیں ضرورت ہوتی ہوگی کپڑوں کی، سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑا ہی پرتشویش لہجہ تھا، جیسے سردی میں صرف گرم کپڑوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں ضرورت تو ہے۔ میں ڈھیلی پڑ کر سوچنے لگی۔ بھابھی سامنے کمرے میں بیٹھی اپنے جہازی سائز سوٹ کیس تیار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ آ جائیں واپسی پر، میں خود جا کر نکال لوں گی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا۔ آخر کب تک یوں پرائے گھر میں بیٹھی رہوں گی؟ ایک نہ ایک دن تو اپنے گھر جانا ہی پڑے گا، میں نے ریسیور رکھتے ہوئے سوچا۔ ذہن ایک دم سے ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ میں اٹھ کر جلدی جلدی اپنے اور مائرہ کے کپڑے پیک کرنے لگی۔ عفان کی آفس سے واپسی میں ابھی 4 گھنٹے باقی تھے، میں بآسانی اپنی پیکنگ کر سکتی تھی، بھابھی سے بھی پہلے۔ امی اچانک مجھے اور مائرہ کو عفان کے ساتھ آتے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، میری بیٹی اپنے گھر آ گئی، اور میری مانو بلی بھی۔ انہوں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے مائرہ کو عفان کی گود سے لے لیا۔ اب وہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ وہ بھی دادی کی گود میں آ کر خواہ مخواہ کلکاریاں مار رہی تھی۔ میں چند منٹ دادی پوتی کے پاس بیٹھی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ صفائی کرنے والی آتی تھی، کل تفصیل سے میں خود صفائی کرواؤں گی، پردے بھی چینج کرنے والے ہیں، اور سردیوں کے بیڈ شیٹ بھی۔ میں نے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ مہرو آ کر دیکھو تو، چھوٹی سی گڑیا ہمارے گھر آئی ہے، ادھر آؤ۔ امی کی خوشی بھری چہکار میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر کی چوکس ماں ایک دم سے الرٹ ہو گئی۔ میں تیزی سے باہر نکل آئی۔ امی یہ کاکی ہے، یہ گڑیا ہے، میری گڑیا، مہرو کی گڑیا ہے نا، مجھے دو امی۔ وہ امی کی گود سے مائرہ کو جھپٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان 11 ماہ میں وہ مجھے ذرا بھی بدلی ہوئی نظر نہ آئی تھی۔ وہی رنگ و روپ، وہی بلیوں جیسی چمکیلی آنکھیں، بھورے اور سرخ بوئے کٹ بال، اور وہی آگ لگا دینے والی ہنسی۔ امی مائرہ نے دودھ پینا ہے اور اسے میں چینج بھی کروا دوں۔ میں نے آگے بڑھ کر امی کی گود سے مائرہ کو لے لیا تو امی نے اس بات میں سر ہلا کر مائرہ کو میری گود میں دے دیا۔ بھابھی بھابھی آ گئی، یہ میری گڑیا ہے، مہرو کی گڑیا۔ امی نے کہا ہے اسے مجھے دو۔
وہ مائرہ کو مجھ سے لینے کے لیے آگے بڑھی۔ مہرو، نہیں بچی، تم سے گر جائے گی، پھر اسے چوٹ لگ جائے گی، یہ روئے گی۔ ابھی نہیں، جب یہ بڑی ہوگی تو پھر تم اس سے کھیلنا۔ امی نے مہرو کو اپنی گود میں جیسے بھر کر کہا۔ چوٹ لگے میری مائرہ کو؟ کیوں چوٹ لگے خدا نہ خواستہ؟ میری مائرہ کو کیوں چوٹ لگے گی؟ میں بڑبڑ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ادھر صرف مہرو کا غم تھا اور مجھے کچھ مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی مجھے یا میری بیٹی کو نظر بھر کے دیکھنے والا نہیں تھا، نہ اس کے دودھ کو ٹوکنے والا، نہ میرے اٹھنے بیٹھنے پر ٹھنڈی آہیں بھرنے والا، بھابھی کی طرح کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے والا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر گہرے سکون کا سانس لیا۔ مہرو کے اندر ایک اچھی آیا چھپی ہوئی تھی۔ چند دنوں میں ہی مجھ پر انکشاف ہوا۔ امی کہیں گئی ہوئی تھیں، میں کام سے فارغ ہو کر نہانے چلی گئی۔ مائرہ سو رہی تھی۔ میرے نہانے کے دوران ہی وہ اٹھ گئی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ میرا نہانا دشوار ہو گیا۔ پھر اچانک اس کی آواز آنی بند ہو گئی تو میں ڈر گئی، اور کہ وہ کہیں بیڈ سے گر نہ گئی ہو یا کچھ اور۔ میں جلدی جلدی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہوں، مہرو اس کو کندھے سے لگائے ٹہل رہی ہے، اللہ اللہ کا ورد ساتھ کرتی جا رہی ہے، اور مائرہ بھی بڑے مزے سے اس کے ساتھ چپکی ہوئی۔ مہرو نے مائرہ کی نیبی بھی چینج کر دی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی۔ پھر میرا بھی معمول بن گیا۔ میں کام میں مصروف ہوتی تو مائرہ کے رونے پر اسے بے دھڑک مہرو کو پکڑا دیتی، مگر رکھتی نظروں کے سامنے ہی۔ وہ بڑے شوق سے بچوں کو سنبھال۔ سارا بیٹا، مہرو سے برتن بھی دھلوا لیا کرو، بڑے اچھے دھوتی ہے، ایک دن امی نے مجھ سے کہا۔ میں نے اگلے ہی دن مہرو کو برتنوں پر لگا دیا، مگر وہ بھی ایک کھرانٹ تھی۔ جس دن موڈ اچھا ہوتا برتن اچھے صاف دھوتی، اور جس دن موڈ خراب ہوتا گند گھول دیتی۔ وقت بڑی سبک رفتاری سے گزرنے لگا۔ مائرہ 1.5 سال کی تھی جب سلیمان میری گود میں آنے والا تھا۔ آج کل پھر مہرو کو دورے پڑنے لگے تھے، چیزوں کا نقصان کرنا بڑھ گیا تھا، اور اس کا بگڑا مزاج بھی، اور اب تو وہ کبھی کبھار مائرہ کو بھی ایک ہاتھ جڑ دیتی تھی۔ اس کی کوئی بھی حرکت مستقل نہیں تھی، اور اس کے مکے اس قدر زوردار ہوتے تھے جو دورہ پڑنے پہ وہ کبھی کبھار مجھے بھی جڑ دیتی تھی تو میری چیخیں نکل جاتی تھیں۔ 3-4 بار وہ مجھے آہنی مکوں سے نواز چکی تھی، اور میری چیخوں پکار اور لڑائی جھگڑے پر عفان اور امی پہلے روز سے لے کر اب تک محض معافیا ہی مانگتے تھے، مہرو کی بے دخلی کا کبھی ارادہ نہیں فرماتے تھے۔ اور اس بار تو میں خود بھی بہت محتاط تھی، مہرو کو مشتعل دیکھتی تو خود ہی کھسک جاتی۔ اس بار اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا، میرے دل کی ساری آرزوئیں جیسے پوری ہو گئی تھیں۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے بیٹے کے لیے، اللہ نے میری سن لی تھی۔ عفان اور امی بھی بہت خوش تھے، ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ سلیمان ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ سفیان میری گود میں آ گیا۔ میری زندگی مصروف سے مصروف تر ہوتی چلی گئی۔ مائرہ کی اسکولنگ شروع ہو چکی تھی، اور مہرو کی عقل کا خدا جانے یہ کون سا رنگ تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں کہتی تھی، کہیں انہیں دھول دپا یا چٹکی نہیں کاٹتی تھی، مگر جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا وہ اس کو موڈ بدلنے پر پیٹنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ آج کل مائرہ اس کا اچھا خاصا شکار بنتی تھی۔ وہ روتی چیختی دادی کے پاس جاتی تو پوتی کی تکلیف دادی سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ مہرو کو مقدور بھر کوستی بھی تھی اور 2-4 ہاتھ لگا دیتی۔ اسی سال امی نے حج پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ سارا، یہ اس گھر کی تمام چابیاں اور خرچ اب سب کچھ تمہارا ہے، تمہیں ہی چلانا ہے میرے بعد، میرا مطلب ہے میرے جانے کے بعد۔ ہو سکے تو مہرو کا خیال رکھنا۔ یہ نہ سمجھ ہے، مگر اب تو کافی بہتر ہو گئی ہے۔ پھر بھی میری درخواست ہے تم سے۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی کسی پاگل خانے بھیجنے کا نہ سوچنا، یہ میری تم سے التجا ہے، ایک ماں کی۔ میں نے اپنے مرتے ہوئے شوہر سے وعدہ کیا تھا، امید ہے تم میرے وعدے کا مان رکھو گی۔ جاتے وقت انہوں نے مجھے اس طرح بلیک میل کیا کہ میں نے دل و جان سے وعدہ کر لیا کہ میں مہرو کا ہر طرح سے خیال رکھوں گی، اور کبھی اس کو گھر سے نکالنے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ امی مطمئن ہو کر حج پر چلی گئی۔ حج سے آنے کے بعد وہ بمشکل 3 ماہ زندہ رہی، اور ایک رات چپکے سے کچھ بھی کہے بغیر سوتے میں ہی چلی گئی۔ شاید انہوں نے جو کچھ مجھ سے کہنا تھا حج پر جانے سے پہلے کہہ دیا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وعدے پر قائم رہنے پر مجبور تھی، اس پاگل کو برداشت کرنے پر۔ ایک دن میں دوپہر میں سو رہی تھی، بچے ہوم ورک کرنے کے بعد کھیلنے لگ گئے کہ اچانک چیخوں پکار سے میری آنکھ کھل گئی۔ شور باہر سے آ رہا تھا۔ میں بھاگی بھاگی باہر آئی۔ سلیمان سیڑھیوں کے پاس گرا تھا اور اس کا سر خون میں لت پت تھا، اور اوپر زینے کے پاس مہرو کھڑی قہر آلود نظروں سے سلیمان کو گھور رہی تھی۔ ہائے، میں مر گئی۔ سلیمان کو اس حال میں دیکھ کر میں کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ مہرو، تیرا ستیہ ناس، تیرا بیڑا گرک، تو کیوں میری زندگی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے؟ موت بھی نہیں آتی تجھے؟ اتنی دنیا مرتی ہے، تو کیوں نہیں مر جاتی؟
पता नहीं अल्लाह ने ये अजाब पैदा किस लिए किया था। क्या फायदा है तेरी जैसी मनहूस। माँ मर गई है, ये अजाब मेरे लिए छोड़ गई, मेरा बच्चा, मेरा लाल। मैंने झुककर खून में लथपथ सुलेमान को उठाकर अपनी गोद में भर लिया। भाभी, उसने मुझे मारा, ये ईंट मारी। ही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने धक्का दिया और मैं मारूंगी इसे, इसने ईंट मारी, मुझे जोर का दर्द है। भाभी, सर में दर्द है। ही, कोई बात नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, साथ हाथ भी नचा रही थी। मैं सुलेमान को करीबी क्लिनिक में ले गई और ड्रेसिंग करवा के ले आई। मायरा और सुफियान सहमे हुए बैठे थे। मेहरू गायब थी। शाम को अफान घर आए तो सुलेमान के सर को पट्टियों में जकड़ा देखकर जैसे पागल ही हो गए। ये क्या हुआ है इसे, किसने मारा? वो शशदर थे। किसने मारना है? एक ही तो है, बला, बदरू, मनहूस, मेरी जिंदगी की दीमक। एक दिन मेरे बच्चों की जान ले लेगी तो आपको सुकून आएगा। मेहरू मरण जोगी ने ऐसा धक्का दिया है, मेरे लाल को तकलीफ से तड़प रहा है, ऊपर से जो खून बहा वो अलहदा। मैं रोने लगी। अफान की आंखों में खून उतर आया। मैंने अफान को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था, या शायद अपनी औलाद को लगी जरा सी चोट भी इसी तरह दिल पर जाकर लगती है। वो एकदम से पलटे और कमरे से निकल गए। मैं फौरन उठी और उनके पीछे गई। उन्होंने गमलों के पास रखी लकड़ी की स्टिक उठाई और कमरे में जाकर मेहरू को बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। दिन ब दिन तुम फैलती जा रही हो। जितना मैंने तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज किया है, उतना तुम सर पर चढ़ती जा रही हो। क्या उस मासूम की जान लेनी थी? करता हूँ मैं तुम्हारा इंतजाम किसी पागल खाने में। उन्होंने घुमा घुमा कर 3 छड़ियां मेहरू की कमर पर मारी। मेहरू की दिलखराश चीखों ने मेरा कलेजा हिला दिया। क्या करते हैं, पागल हो गए हैं? वो तो बेवकूफ है। पागल बिल्कुल, आप क्यों दीवाने हो रहे हैं? मैंने बामुश्किल उन्हें खींच के पीछे किया। मेहरू जमीन पर लेटकर बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर रो रही थी। दर्द है, बहुत दर्द है। ईंट मारी, मान ने ईंट मारी, भाई ने मारा, अम्मी दर्द है। ही, कोई बात नहीं, सब मारते हैं। दर्द है अम्मी, दर्द है। हाय हाय। उसके दिल दहला देने वाले वावेले ने मेरे जिस्म से जैसे जान ही निकाल दी थी। सुलेमान तो अपनी तकलीफ बयान कर सकता था, उसके दर्द को बांटने वाले बहुत थे, और ये बेजुबान, ना समझ, इजहार से भी कासिर। मालूम नहीं दोपहर से उसे किधर दर्द था। दोपहर से कह रही थी दर्द है, बहुत दर्द है। मेरी आंखें भर आईं उसको तड़पता देख के। तुम पीछे हट जाओ, आज मैं इसको मार डालूंगा। इस नामुराद ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। सिर्फ मैं ही क्यों इस मनहूस की खातिर अपनी खुशियां बर्बाद करूं? बाकी किसी को तो कुछ ख्याल नहीं। अफान जैसे हाँप रहे थे। अब क्या फायदा इन बातों का, पहले वक्त था, अब ये आप ही की जिम्मेदारी है। यूं अपनी नेकी को जाया मत करें। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मेरा दिल जमीन पर मचलती मेहरू के लिए बेइख्तियार रो रहा था। चलें आप सुलेमान के पास। मैंने जबरदस्ती अफान को बाहर निकाला। मेहरू, किधर दर्द है? मैं उसके सामने जमीन पर बैठ गई। दर्द है, बहुत दर्द है, भाई ने मारा, जोर जोर से। कोई बात नहीं, मेहरू को सब मारते हैं। दर्द है, कोई बात नहीं। अम्मी नहीं, कोई बात नहीं। वो दोनों हाथ में सर दामे आंखें बंद किए जार जार रो रही थी। पता नहीं वो पहले भी रोती थी या मैंने आज ही इसके आंसू देखे थे। भल भल सुर्ख आंखों से निकलते शफाफ आंसू। मेहरू, चलो उठो, ऊपर लेट जाओ, मुझे बताओ कहाँ दर्द है। मैंने उसे उठाना चाहा मगर वो हिली नहीं। दर्द है, बहुत दर्द है। वो एक ही गर्दान किए सर को अपने घुटनों में घुसाए बच्चों की तरह रोए जा रही थी। मैं चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर खामोशी से उठकर बाहर आ गई। वक्त कैसे गुजरा और कैसे भागता चला गया। मुझे खबर हुई तो इस रोज जब 19 साला मायरा के लिए पहला प्रपोजल आया, और प्रपोजल भी ऐसा शानदार कि हम दोनों मियाँ बीवी ने एक लम्हे को भी नहीं सोचा और हाँ कर दी। ये सोचे समझे बगैर कि मायरा ने तो अभी 3rd ईयर में एडमिशन लिया है। आमिर ने सीए कर रखा था। उसके अलावा उसके वालिद की 2 फैक्ट्रियां थीं। डिफेंस में 4 कनाल का महल नुमा घर था, और आमिर उनका इकलौता बेटा। आमिर और उसकी वालदा ने मायरा को उसके दोस्त के घर किसी फंक्शन में देखा था, और बस वहीं उस पर फरफीता हो गए। बस सारा बहन, मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी, मासूम, भोली भाली, और सबसे बढ़कर जो मेरे आमिर को भा जाए, उसके साथ चलते हुए जचे। आप ना नहीं करेंगी। उनका इसरार इस कदर शदीद था कि हमें सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा था। अफान ने एक हफ्ता सारी छानबीन में लगाया और हाँ कर दी। अगले हफ्ते ही आमिर के घर वाले मंगनी की तारीख तय करने आ गए, वो भी सिर्फ एक हफ्ते बाद। मेरे तो हाथ पांव फूल गए, मगर अल्लाह का शुक्र है माली तौर पर हम इस कदर मुस्तहकम थे कि इस तरह के पड़ने वाले किसी भी अचानक खर्च से बआसानी निबट सकते थे। पता नहीं ये अफान की कोई नेकी थी, मेरी खुशबख्ती, या कोई और वजह। इस वक्त हम अपने खानदान में मुआशी तौर पर सबसे बेहतर हालत में थे। आफान अपने ही महकमे में एमडी हो चुके थे। घर के साथ वाला प्लॉट हमने खरीद लिया था।
बल्कि उसे घर के साथ लॉन के तौर पर इस्तेमाल भी कर रहे थे। सुलेमान मेडिकल के पहले साल में था और सुफियान एफएससी कर रहा था, और कोई बड़ी परेशानी भी नहीं थी। इसके बरक्स अफान के दोनों भाई अभी तक सेट नहीं हो सके थे। उनके बच्चे भी तालीमी मैदान में कोई नुमाया मुकाम हासिल नहीं कर सके थे। सब हमें रश्क की निगाह से देखते थे। इस पर मुतजाद मायरा का रिश्ता, वो भी टॉप क्लास घराने में। उन्होंने मंगनी बहुत धूमधाम से की। ऐसी मंगनी ना तो हमारे खानदान में पहले कभी हुई थी और ना होने की तवक्का थी। मैं तो पल पल अपनी बच्ची की खुशियों के दायमी होने की दुआ कर रही थी, हासिदों की हसद से बचने की दुआ। अफान भाई, हमें शादी 2 माह बाद चाहिए। आमिर ने बिजनेस टूर पर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जाना है। इसकी ख्वाहिश है कि मायरा भी उसके साथ जाए। आमिर के वालिद ने बहुत आजी से दरख्वास्त की, और हमें जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है हमारे पास। और हमने भी इनके हस्बे ख्वाहिश 2 माह में अपनी बसात से बढ़कर शादी की। शादी के 15 दिन बाद मायरा आमिर के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल गई। हर दूसरे दिन उसका फोन आ जाता तो मेरा सेरो खून भर जाता। जो वसवसे दिल में थे सो वो भी निकल गए। 1.5 माह बाद दोनों वापस आए थे। दोनों की सेहत काबिले रश्क हो रही थी। मायरा के हसीन चेहरे पर तुम नजर नहीं ठहरती थी। बस अब अल्लाह ताला जल्द से जल्द मेरे आमिर को एक नन्हा आमिर अता कर दे। मैं समझूंगी दुनिया में सब कुछ पा लिया। आमिर की अम्मी इन दोनों के साथ आई थी। कहने लगी तो मैंने दिल ही दिल में आमीन कहा। और जैसे इसी एक दुआ से तकदीर को जिद सी हो गई। मायरा की शादी को 1 ना 2 इकट्ठे 5 साल गुजर गए, मगर उसकी गोद हरी ना हुई। दोनों मुकम्मल तौर पर सेहतयाब थे और इलाज में भी कोई कसर ना रखी थी। बाहर के मुल्कों में दोनों चेकअप के लिए जाते रहते थे। इसके अलावा दम दुरूद सब हो रहा था, मगर इसके बावजूद न जाने अल्लाह की इस देर में क्या मसलहत थी। अम्मी आंटी का मूड बहुत ख़राब रहने लगा है। वो आमिर को प्रेशराइज कर रही हैं दूसरी शादी के लिए। अम्मी, मैं क्या करूं? इस बार मायरा आई तो मेरी गोद में सर रखकर बिलक बिलक कर रो दी। मेरी बच्ची, ये किसी के बस की बात थोड़ी है, न तेरे न मेरे। बस अल्लाह से दिन रात दुआ है, वो ज़रूर सुनेगा। तुम हौसला करो। आमिर क्या कहता है? पहले तो कुछ नहीं कहते थे, मगर अब वो भी हर वक्त घर के सन्नाटों का जिक्र करते रहते हैं। अम्मी, मुझे बहुत डर लगता है। मायरा का इतना सा मुंह निकल आया था। उस रात मैं तहज्जुद के लिए उठी, रो रो कर अपनी बच्ची के बामुराद होने की अल्लाह से दुआ की, और फिर ये मेरा मामूल बन गया। कई माह गुजर गए उसके आगे आहोजारियां करते हुए, और उस दिन उसने भी सुन ली। अम्मी, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खुशी से मायरा की आवाज़ कांप रही थी। मैं उसी वक्त सजदे में गिर गई। खुदावन ताला का लाख बार शुक्र अदा किया। मायरा का केस भी खासा पेचीदा था। पूरे 9 माह गोया सबकी जान अटकी रही। मेजर ऑपरेशन हुआ था। आइंदा ये मां नहीं बन सकेंगी। छोटा आमिर डॉक्टर ने आमिर की वालदा की गोद में देते हुए उन्हें खबरदार किया। अल्लाह ने हमें जो ये नेमत दे दी है डॉक्टर साहब, हमारे लिए यही काफ़ी है। हम उसका शुक्र अदा करते नहीं थकेंगे। वो हंसकर बोली, ये ज़िंदगी वाला हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैंने भी दिल में 100 बार आमीन कही। बस भाई मायरा, अब तुम जल्दी से सेहतयाब होकर भाई की शादी की तैयारी करो। सुफियान की मंगनी करेंगे और सुलेमान की शादी। इस गोल गोथने के इंतजार में सब काम रोक रखे थे मैंने मायरा की पेशानी चूम कर कहा, क्यों नहीं अम्मी, मुझे खुद उनकी शादी के दिन का शिद्दत से इंतजार है। मायरा बहुत खुश थी। सुलेमान ने तो अपनी पसंद से अपनी किसी क्लास फेलो डॉक्टर साइमा के लिए हामी भरी थी। सुफियान के लिए अफान ने ज़ेब आपी की छोटी बेटी को चुना था। भाई शादी में तो कोई रुकावट नहीं, हम करा दें, बस ऊपर वाला पोर्शन सारा गिरा कर दोबारा बनाना पड़ेगा, जदीद तर्ज का। इसमें 2 से 3 माह लग जाएंगे। अफान ने मुझे याद दिलाया। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। मैंने भी इस बात में सर हिलाया। उसके बाद 1-2 माह बारिशों का मौसम था, इसीलिए कंस्ट्रक्शन का काम मुलतवी हो गया, और हमारा जो ख्याल था उस काम में 2 माह लगेंगे वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। ऊपर बिल्कुल नीचे जैसा मुकम्मल पोर्शन बना था, एक मुकम्मल घर, और उसमें पूरे 5 माह लग गए। ओफो अम्मी, अब कंप्लीट भी करवाएं सब कुछ जल्दी जल्दी। फिर 2 माह बाद शर्जील की बर्थडे है। अच्छा खासा ग्रैंड फंक्शन होगा, और इसकी तैयारियां भी शर्जील नहीं, ये नाम सुरखील है, आई थिंक। सुरखील के दादा दादी ने 1 माह पहले शुरू कर देनी है। फिर मुझसे गिला मत कीजिएगा। मायरा ने ऊपर के पोर्शन को देखते हुए कहा। हाँ, बस थोड़ा सा काम है। मैं सोच रही थी अगले हफ्ते हम दावत कर देते हैं, उसके बाद शादी की तारीख मुकर्रर हो जाएगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल नेक ख्याल है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं, मायरा फौरन बोली। पोर्शन की तामीर की खुशी भी हो जाएगी और शादी के कामों की तरतीब भी। अम्मी, ऊपर का काम रह कितना गया है?
बस थोड़ा सा कमरों की फिनिशिंग होनी है, पेंट भी शुरू है, और सबसे बढ़कर जीना तामीर होने वाला है। वो भी तुम्हारे बाबा वुड का लगवाएंगे। अभी ऊपर जाने के लिए आरजी जीना लगा रखा है, वो भी कल परसों तक हटा देंगे। पहले वाली सीढ़ियां तो खत्म कर दी हैं, वो बोली। हाँ, सारी टूट गई थी दरमियान में, और दो तीन के तो सिर्फ सरिये रह गए थे। कल परसों से मुकम्मल तौर पर हटा देंगे। चलें, अच्छी बात है। जितनी जल्दी हो सके सब काम मुकम्मल हो जाएं। मैं जरा सरखील को देखूं, मामू के साथ खेल रहा था। डॉक्टर सुलेमान को घोड़ा बनाया हुआ था उसने, वो कहते हुए चली गई तो मैं भी किचन में आ गई। कुरान पाक खत्म हो चुका था। मेरी खालाजाद आमना की आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो अब नाते पढ़ रही थी। सब खूब जज्ब के आलम में सर झुकाए सुन रहे थे कि अचानक कहीं से सरखेल के बेतहाशा रोने की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर मायरा को देखा। अभी थोड़ी देर पहले तो वो मायरा के पास बैठा था। इस बच्चे को पाँव पाँव क्या चलना आया, टिकता ही नहीं। अम्मी, सरखेल कहाँ है? वो परेशानी से उठी। मैं भी उसके साथ बाहर निकल आई। सरखेल के रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। हम दोनों ने इधर उधर कमरों में देखा, वो कहीं नहीं था। अम्मी, आवाज ऊपर से आ रही है, मायरा खौफजदा अंदाज में बोली। मेहरू सहन में बैठी बॉय कट पालों में जोर जोर से ब्रश चला रही थी। हम दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे, और जो निगाह की तो हमारे कलेजे धक से रह गए। ऊपर जो कमरा स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं आजकल पेंट वगैरह का सामान पड़ा था। आग के शोले उधर से निकल रहे थे। सीढ़ियां टूटी हुई थी, 3 स्टेप तो थे ही नहीं, लोहे के सरिये निकले हुए थे। आरसी जीना सुबह उठाया जा चुका था, नया अभी शाम तक बनकर आ जाना था, और सरखेल की आवाज़ उसी स्टोर से आ रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि वो ऊपर गया कैसे, और फिर टूटी हुई सीढ़ियां फलांगना बहुत अजीब बात थी। इतने में अंदर से दूसरी खवातीन भी उठकर आ गईं। सूरत हाल जानकर उनके भी रंग उड़ गए थे। मायरा सीढ़ियों की तरफ लपक रही थी। मायरा, मेरी जान, कैसे जाओगी? ऊपर सीढ़ियां बिल्कुल टूटी हुई हैं, खस्ता हाल है, तुम गिर जाओगी। मैं बामुश्किल उसे दबोचे खड़ी थी। अम्मी, मेरा सर खेल, मुझे जाने दें। वो अपने आप को छुड़ाते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी। हाय, कोई किसी को बुला कर लाए, हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैंने अपना सर पीट लिया। बच्चे की तकलीफ देख चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और मैं मायरा को भी खोना नहीं चाहती थी। अम्मी, अम्मी, मुझे जाने दें, मेरा बच्चा, मेरा सुरखील। उसके मुंह से झाग निकलने लगी थी। आंखों के आगे शायद अंधेरा आ गया था। वो तेवरा कर मेरी बाहों में झूल गई। वो थी भी तो बिल्कुल धान पान सी। घर की मुलाजमा बाहर भागी तो थी, मगर इतनी जल्दी मदद कहाँ से लाएगी? खवातीन चीख रही थीं, रो रही थीं, मगर अपनी जान से दुश्मनी तो कोई भी नहीं कर सकता था। उसी वक्त मेहरू ने अपनी जगह से एक जोरदार छलांग लगाई और पहले जीने पर कदम रख दिया। मेहरू, मेहरू, गिर जाओगी, मत जाओ मेहरू। मैंने मायरा को जमीन पर लिटा दिया और उसके पीछे लपकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ही। रोशनी, ऊपर भाभी रोशनी, मैं जाऊंगी, कोई बात नहीं, ही। वो अनसुनी करती हंसती 2-3 सीढ़ियां फलांगती चली गई। दरमियान के तीनों जीने धड़ाम से नीचे आ गिरे। मेहरू ने ऊपर वाले जीने को मजबूती से दोनों हाथों से थाम लिया। उसका बाकी का धड़ नीचे लटका हुआ था। बंदर की तरह उसने कलांच भरी और आखिरी जीने के पास पहुंच गई। दूसरे पल वो ऊपर थी। मेहरू, मेहरू, सरखील को लेकर आओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, 5-10 रुपए। मेहरू, अच्छी मेहरू, सरखील को लेके आओ, मैं नीचे से चिल्लाई। उसने बड़े आराम से इधर उधर देखा। चंद लम्हे खड़ी मेरी पेशकश पर गौर करती रही, फिर एकदम से भागकर आग वाले कमरे में चली गई। मेहरू, मेहरू, मैं और दूसरी औरतें चीख रही थीं। चंद लम्हों बाद वो बेहोश सरखील को अपनी छाती से लगाए बाहर आ गई। उसके भूरे बालों ने मामूली सी आग पकड़ ली थी। वो उन्हें लापरवाही से झाड़ रही थी। मेहरू, नीचे आओ, नीचे आओ, 3 सीढ़ियां तो आओ, फिर हम तुम्हें पकड़ लेंगे, एक औरत चिल्लाई। ऊपर आग फैलती जा रही थी। नहीं, पैसे दो, 5 रुपए, 10 रुपए, ही। ये लो पैसे, आ जाओ नीचे। 2-3 खवातीन ने नोट हाथों में पकड़ कर दिखाए। नहीं नहीं, नहीं आऊंगी, ऊपर मजा है। भाभी आ जाओ, मायरा आ जाओ, ऊपर सब आ जाओ, सब जाएंगे आग में, रोशनी में। वो गोल गोल घूम रही थी। घूमते घूमते वो एकदम से रुकी, जीने के पास आकर जरा सी झुकी और सुर्खील को नीचे उछाल दिया। 4-5 खवातीन बैक वक्त लपकी और बच्चे को हिफाजत से अपनी बाहों में ले लिया। उसी वक्त सुलेमान भागा भागा आया। मम्मा, क्या हुआ है मम्मा? मेहरू, नीचे आ जाओ, आग भड़क रही है। मेरा अब सारा ध्यान मेहरू की तरफ था, जो बेफिक्री से हंसे जा रही थी। सुलेमान, मेहरू को बचा लो, इसे ऐसे ना मरने देना, मैंने तुम्हारी दादी से वादा किया था। मैं मेहरू को आवाजें देते हुए रो पड़ी। उसी वक्त मुलाजमा के साथ वालों के घर से लकड़ी की सीढ़ी ले आई। मुलाजमा ने सीढ़ी दीवार से लगाई और तेजी से
सुलेमान ने सीढ़ी दीवार से लगाई और तेजी से चढ़ता चला गया। महरू आग के धुएं की वजह से बुरी तरह खांस रही थी, सीना पकड़े दोहरी हुई जा रही थी। वो शायद गिरने को थी कि सुलेमान ने जाकर इसे सहारा दिया और अपनी बाहों में मजबूती से जकड़कर उसे घसीटता हुआ नीचे उतारने लगा। मैंने नीचे से सीढ़ी पकड़ रखी थी। लागर सी महरू का वजूद नीचे घिसटता आ रहा था। सुलेमान उसे इसी तरह उठाए उठाए अंदर लाउंज में ले आया। बाहर शायद फाइबर ग्रेड की गाड़ी आ गई थी, मगर मुझे कुछ होश नहीं था। मैं महरू के ऊपर झुकी उसे दीवानों की तरह पुकारे जा रही थी। मम्मा, महरू ठीक है, बस निढाल हो गई है, सो रही है, अभी उठ जाएगी, आप फिक्र ना करें। सुलेमान ने स्टेथोस्कोप लगाकर उसकी धड़कनें, नब्ज सब चेक कर डाली। इसे तो नींद नहीं आती, ये कैसे सो सकती है? महरू, आज तुमने इस घर को तबाह होने से बचा लिया, मायरा को बचा लिया, हम सबको। आज मुझे समझ आई कि खुदा ने कोई भी वजूद बेमकसद पैदा नहीं किया। तुम भी बेवजह नहीं हो, ये अल्लाह के फैसले हैं, उसकी तख्लीक के राज। हम नादान क्या जाने, वो भी तो तुम जैसों को हम जैसे होश वालों के दरमियान पैदा करके कहता है, कोई बात नहीं, इनको भी सहारो, इनको भी जगह दो, तुम्हारी तरह इनको भी मैंने तख्लीक किया है। तुम कौन होते हो मेरी तख्लीक से नफरत करने वाले, मजाक उड़ाने वाले, मुंह बिगाड़ने वाले? महरू, तुम अनमोल हो, इस घर का सबसे कीमती वजूद। महरू, आंखें खोलो। महरू, उठो ना महरू। उसके बूढ़े जुरियां ज़दा चेहरे पर कर्ब ही कर्ब था। मैं उसके सुर्ख और सफ़ेद भूरे जले हुए बालों को प्यार से सहलाती इर्द गिर्द से बेनियाज बेख्तियार पुकारे जा रही थी। ये स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है। बहुत अच्छी स्टोरी थी। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।